Good evening, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. International Fab Talks is about connecting with people, wanting to know what they do in their everyday lives, how they enhance the beauty of their lives, what kind of profession they have chosen, and how they are making use of every single minute in their lives. We love to meet different kinds of individuals from different walks of life, from different professions. The International Fab Talks is all about unsung heroes, professionals, and people who have made it in spite of the hardships that they have faced. I'd like to say that once again, in spite of all the hardships, when people begin to smile and warm up the lives of others as well, bring smiles on the faces of people around them, don't you think it's a beautiful thing? Don't you think it's really a happy day to meet such people? And yes, today is a beautiful day to meet one special celebrity guest who's here with us. She's none other than Mrs. Shivani Kaushal. She's joining us all the way from Himachal Pradesh. Let me put it right. She's joining us all the way from Himachal Pradesh, which is located in India, my dear friends. She is a lovely soul, warm, gentle, down to earth, and very polite. You can communicate with her in a very nice way. She is very open and very progressive in her thoughts. I really like the way she has emerged victorious in spite of the pressure that she's been facing around her. She's a wonderful human being. You'd love to know who she is? Join me to welcome her on stage today. She's none other than Mrs. Shivani Kaushal. Hello, ma'am, and welcome to the session. बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे लिए वक्त निकाले हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Hello, ma'am. Jai Shri Radhe. Good afternoon, everyone. Radhe Radhe, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for being here. She loves to engage herself in different activities. She's a teacher, a model, a dancer, and an actress as well. She's using every single minute of her life to make it worthy. And she is the winner of several titles. She's been participating in several modeling contests and has taken part in several activities with regard to television and as well as films, if I'm not mistaken. She is into that zone. This is like, apart from being a teacher, she's been doing much more to enhance her passion and to say that yes, we can do it in spite of our age or in spite of what the society says. I would love to follow my childhood dreams, and she has fulfilled her childhood dreams today, my dear friends. She is the proud winner of Mrs. Beautiful Himachal. She's also the winner of Mrs. Diva Queen, and many other titles to her credit. Now, if I'd like to add more titles to her credit, she's also Mrs. India Classical Queen, and another one beautiful title she has won is Mrs. Fame of India. That's really nice to win titles, and we'll get to know how she's doing all of this. This is a secret. She's going to share that with us and how we can be the next Mrs. Shivani Kaushal. This is for all the women and men out there. If you think that age is really catching up on you and you just want to sit down and, feel sad about your aging process, here is Mrs. Shivani Kaushal, who is going to share her journey as to how she's achieved happiness in her life despite the age barrier. मैम बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे लिए वक्त निकाले हैं. दोबारा हम कहना चाहेंगे आपका यहाँ पर रहना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें. अभी हम ये जानना चाहेंगे आपके बारे में. आप एक टीचर हैं, एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस भी है और एक डांसर भी है, और आप बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं. आप टाइटल्स भी इतने सारे पा चुके हैं. अभी इस दिन इस वक्त यहाँ पर अपने आप को कैसे वर्णन कर पाएंगे? हु इज द रियल मिसेस शिवानी कौशल? ओवर टू यू. जैसे कि मैम आपका मेरे लिए क्वेश्चन है कि आज मैं क्या हूँ, मैं खुद को क्या बोलना ज्यादा पसंद करूंगी. यस, मैं आई एम माई सेल्फ शिवानी कौशल. सबसे पहले तो मैं एक गुड ह्यूमन बींग हूँ. देन उसके बाद मैं एक मदर हूँ, वाइफ हूँ, मदर हूँ, देन टीचर हूँ, और अब मैं एक सक्सेसफुल मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ. और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज जहाँ पहुंची हूँ, बड़ी मेहनत के साथ पहुंची हूँ. और आज मैं अपने जो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था उसको फुलफिल होते हुए देख रही हूँ. और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, अभी भी मैं रुकना नहीं चाहती. और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए, अपने पे फोकस करके, अपने पे काम करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूं, क्योंकि मैंने अपने फैमिली के लिए फुल टाइम दिया है, अपनी लाइबिलिटीज को पूरा किया है. एज अ टीचर भी मैं अपना प्रोफेशन जो बड़े अच्छे से निभा रही हूँ, अपना जो भी मेरा करेक्टर है वहां पे. और एज ए मॉडल भी एक सक्सेसफुल मॉडल हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ. तो मुझे अब लगता है कि मेरी जर्नी अपने लिए अभी स्टार्ट हुई है.
वंडरफुल वंडरफुल, आई रियली लव दिस। मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है दोबारा। जी आई लाइक दिस। इतने साल हम अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए हम काम कर रहे थे, राइट? जी अभी ये मेरा खुद का ये पैशन है जो पूरा हो चुका है और हो रही है, प्रोसेस में है। जी यू आर नाउ जी अ सक्सेसफुल मॉडल, एन एक्ट्रेस, अ टीचर, एंड अबव ऑल यू सेड आई एम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड आई एग्री विद यू मैम। आप सचमुच में हृदय से बहुत अच्छे, शांत स्वभाव के हैं और सच्चे दिल के हैं। थैंक यू। दूसरों को समझना और खुद को समझना, ये सब एक कला है जो सभी लोग नहीं जान पाते हैं। जी खुद को समझते हैं, दूसरों को नहीं समझते, या दूसरों को समझते हैं, खुद को नहीं समझते। आप ऐसे इंसान हैं जो मैंने बहुत कम मिलते हैं, हमको मिलना या इंटरेक्ट होने में। तो that's really nice to understand yourself and to understand others. She is a wonderful human being, my dear friends. We'll get to know more about her journey today on the International Fab Talks with regard to all aspects of her life. Dear ma'am, आप एक माँ भी हैं, तो माँ जी के किरदार आपने बहुत खूब निभाया है और निभा रहे हैं आज तक। तो एक जी माँ होने के नाते आपको किस तरह का चैलेंजेस दे सामना करना पड़ा जब आप ये डिसीजन ले चुके कि मैं अभी मेरा चाइल्डहुड पैशन फुलफिल करूंगी और मैं इस फील्ड में आऊंगी, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। आई फील कंप्लीट। हम्म, आई हैव डन माई बेस्ट फॉर एवरीबडी, आई वुड लाइक टू डू मोर फॉर माई सेल्फ। खुद का खुशी भी कुछ होता है और बनती भी है हमारे सबका खुशी। खुद का एक जी पर्सनल एक इच्छा होती है कुछ बनना या कुछ साबित करना है। तो आप एक माँ होने के नाते आप किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं घर में? डिड दे एग्री एट होम, योर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली मेंबर्स? ओवर टू यू। जैसे कि मैम बच्चों की तरफ से मुझे सपोर्ट फुल सपोर्ट है। मेरी फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, उनका जो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है, मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस होना और मेरी फैमिली का मुझ पे कॉन्फिडेंस शो करना, वही शायद मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों का ये मानना है कि यस मम्मा यू कैन डू इट, आप कर सकते हो और आप काफी आगे जाओगे और आप सब हम सब के लिए इंस्पिरेशन हो। और आपको देख के हमारे फ्रेंड्स की मदर्स भी इंस्पायर होती हैं, वो भी आपके बारे में बात करती हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज के लिए कि चलो मुझे देख के कोई और इंस्पायर हो रहा है, जो कि शायद अपने ड्रीम्स को और अपने चाइल्डहुड जो भी उनकी इच्छाएं थी उनको दबा के रखा था एक फैमिली की लाइबिलिटीज के चलते या अपने जॉब प्रोफाइल के बिजी शेड्यूल के चलते, वो सब चीजें जो वुमेन्स होती है वो उसको पीछे कर देती हैं। लेकिन मैंने ये चीजों को पीछे करके खुद को अब पीछे भी नहीं बोल सकते, पर साथ साथ में वो भी निभा रही हूँ। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि मेरे बच्चों का बड़े हो चुके हैं और फैमिली ऑल सेट है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ऑल सेट है, तो अब मुझे अपने पैशन पे काम करने के लिए मैं फ्रीली कर सकती हूँ, मुझे कोई भी किसी तरफ का प्रेशर नहीं है। और मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है, मेरे बच्चों का तो मुझ पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है और बहुत ज्यादा वो मुझे एनकरेज भी करते हैं इस चीज के लिए और ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि यस मामा आप कर सकते हो, आप ये फील्ड में भी जा सकते हो। काफी वो चीजें मुझे काफी गाइड करते हैं कि आपको सोशल मीडिया में कैसे जाना है, कैसे कैसे आपको अपने मतलब फॉलोवर्स बढ़ाने हैं या आपको कैसे कंटेंट क्रिएट करने हैं, वो सारी चीजें जो कि शायद हम लोगों को पता नहीं होती, तो बच्चे मुझे मेरे गाइड करते हैं बहुत। जी एक्सीलेंट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया है। दैट्स रियली नाइस। मम्मा यू कैन डू इट, आपने ये शेयर किया, मुझे यस बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा लगा वो बात सुनने में। मम्मा जी यू कैन डू इट, आई थिंक हम्म, यहाँ सब कुछ सीखने को मिलेगा सभी बच्चों को, अपने हम्म, माँ बाप को, उनके पैशंस को हेल्प करना है, अलाउ देम टू ग्रो। इतना हम्म, सेल्फिश भी नहीं रहना। थोड़े बच्चे सेल्फिश है, जी जी want their parents to only be attached to the family, लेकिन आपके बच्चे बहुत ब्रॉड माइंडेड है और प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ पर सभी बच्चों को सीखना है कुछ ना कुछ, कि अपने पेरेंट्स को भी एक आजादी देना या उनको एक पॉजिटिव फीलिंग देना उनको, कि भाई आप भी कुछ सोशल मीडिया में आ जाए, या become what you want to become. I really यस love this. It's excellent. That's great. और आप जब ये मिसेस ब्यूटीफुल हिमाचल का टाइटल आपने जीता है, तो तब आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ थे, आपके पतिदेव थे और आपके बच्चे भी थे, आपके लिए चीयर कर रहे थे। तो जी दैट जी वाज द फर्स्ट टाइटल आपने जीता, तो वो दिन आपको याद है? तो आप कुछ एक्सप्रेस कर सकेंगे उसके बारे में? जी जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा था और सबकी लाइफ एकदम स्टेबल हो गई थी, तो वैसे ही उस टाइम में जैसे मैंने बताया कि मॉडलिंग में आना मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, मेरा पैशन था। लेकिन मुझे वही टाइम नहीं मिल पाया अपने जॉब के चलते और फैमिली लाइबिलिटीज के चलते। लेकिन कोरोना टाइम में जब सबकी लाइफ एकदम स्टेबल हो गई, रुक गई सारी लाइफ, तो उस टाइम मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर जो उनके स्किल्स थे
वो सब बाहर आए हैं। और मेरे भी अंदर ये स्किल था, एक पैशन था कि मुझे मॉडलिंग करनी है। तो उस टाइम में जैसे हमारा जॉब प्रोफाइल भी उस टाइम काफ़ी ये हो गया था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बच्चों को स्कूल नहीं जाके हमें पढ़ाना और था, घर में से पढ़ाना था। तो फिर क्या हुआ कि हम जो है घर में रह के अपना बाकी काम करते-करते और स्कूल की अपने जो भी मेरा प्रोफेशन है, जैसे आई एम अ प्रोफेसर, तो मैं अपने लेक्चर डिलीवर करके जब मुझे अपने लिए टाइम मिलता था, तो मैंने खुद पे वर्क करना शुरू किया। और इन बिटवीन ही मुझे पता चला कि हिमाचल में एक ब्यूटी पेजेंट शो निकल रहा है। तो मैंने उसके लिए माइंड सेट किया कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है और मैं कर सकती हूँ। फिर मेरी फैमिली ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि यस कर सकते हो, आप ले सकते हो चांस और आप कर लोगे, हमें पता है कि आप कर लोगे। तो मैंने वहाँ चांस लिया और भगवान की दया से मैंने फर्स्ट टाइम ही जब मैंने अटेम्प्ट किया अपना रैंप वॉक स्टार्ट किया और उसी टाइम मेरे अंदर बहुत एक कॉन्फिडेंस लगा मुझे कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने जो मुझे चीयर अप कर रहे थे नीचे से, तो मुझे उनको देख के और ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस लग रहा था कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। मेरे मन में यही था कि जो देख रहे हैं वो सब एक पत्थर की मूर्ति है और मैं अकेली हूँ, मैं ही रॉक कर रही हूँ और जो बाकी हैं उनसे मैं बेस्ट हूँ। बस मन में यही चीज़ रख के मैंने स्टेज पे अपने सारे राउंड क्लियर किए और आफ्टर ऑल फिर लास्ट में मुझे जो टाइटल विनिंग का टाइटल मिला मिसेस ब्यूटीफुल हिमाचल का। जब क्राउनिंग के टाइम फिर मेरी फैमिली को भी बुलाया गया स्टेज पे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरा बेटा, मेरी बेटी साथ थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी फैमिली मुझ पे उस टाइम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी और मैं खुद पे भी प्राउड फील कर रही थी कि नहीं मैंने कोशिश की और मैं उसमें कामयाब हुई। Yes, dear. That's really nice, ma'am. Excellent. बहुत बहुत शुक्रिया for sharing that. मैं इमेजिन कर सकती हूँ जब आपके फैमिली मेंबर स्टेज पे आ रहे थे और आप सब लोग वहां पर ठहर के वो आपका प्रशंसा कर रहे थे, आपके साथ ठहर रहे थे. That's हम्म, really nice. They were supporting you in your journey. That's really nice. ये बड़ी मैसेज है सभी परिवार वालों के लिए. अपने प्यार लोग जो है फैमिली मेंबर्स के साथ आप खड़े रहिए और उनको हेल्प कीजिए और आप सब लोग खुश हो सकते हैं. जैसे आप शिवानी कौशल मैडम is very happy with her family. That's really nice. What I like about your family, ma'am. मैम, आपने कहा आप एक प्रोफेसर भी है, आप एक कॉलेज में काम करते हैं, तो आप इस कॉलेज का सफर, ये आपका टीचिंग का प्रोफेशन का सफर बता सकते हैं. हाउ डिड यू बिकम अ टीचर एंड हाउ डिड यू ट्रांजिशन इनटू अ मॉडल? जी। जब मेरी बात करूँ मैं, मेरी अर्ली एज में मैरिज हो गई थी, तो मेरी स्टडीज उस टाइम चल रही थी। फिर मेरा एक उस टाइम मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक टीचर बनना है, क्योंकि मेरे एक टीचर स्कूल टाइम में रोल मॉडल थे, एक मैडम मेरे, तो मुझे उनको देख के लगता था कि मुझे भी इनकी तरह एक टीचर बनना है और अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनना है। तो मैंने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया और काफी स्ट्रगल होता है आफ्टर मैरिज स्टडीज करना बच्चों के साथ, फैमिली को लेके। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी कि चलो मुझे अब कुछ पाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना है और बहुत अपने आप को मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आफ्टर ऑल फिर जो मुझे जॉब जो मैं चाहती थी, जो मेरा ड्रीम था एक बिकम अ टीचर, तो मैं एक टीचर बनी। और मैं 8 9 10 +1 +2 की क्लासेस पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ उनको। तो मैं अपने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और जब भी मैं जाती हूँ कहीं, तो मैं उनसे पूरी बातें शेयर करती हूँ, तो वो भी मेरे प्रोफाइल के बारे में जानते हैं और बहुत ही अच्छा फील करते हैं वो कि हमारी मैडम जो है हमें बहुत एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे मॉडल एक्ट्रेस है। तो मतलब काफी अच्छा लगता है मुझे कि मैं मेरा पैशन और प्रोफेशन में दोनों अच्छे से निभा पा रही हूँ। और मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन में भी कोई कमी ना रखूं, अपने पैशन के साथ साथ अपने प्रोफेशन में अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो जितना मेरे से बेस्ट होता है मैं उनको वो सब चीज देना चाहती हूँ जो मुझे उनको देना है नॉलेज। तो मैं अपने प्रोफेशन को भी फर्स्ट रखती हूँ और अपने पैशन को देन उसके बाद सोचती हूँ उसके बारे में। जी। एक्सलेंट, एक्सलेंट मैम, दैट्स रियली वंडरफुल. मैम, अभी हम ये पूछना चाहेंगे मैम आपसे, ये मॉडलिंग का करियर आपने चुना, जी। आपका पैशन भी है और चाइल्डहुड ड्रीम भी है और वो तो फुलफिल हो चुकी है, आप इसमें उतर के आ चुके हैं. लेकिन बहुत सारे लोग के मन में ये प्रश्न रहेगा, हाउ डिड शी डू इट? क्योंकि उम्र का भी एक क्राइटेरिया रहती है जहां मॉडलिंग होती है, जहां तक मुझे मालूम है. लेकिन आप उस बैरियर को तोड़ के कैसे आ चुके हैं? क्या सभी दूसरे लोग जो ये शो देखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सब लोग, मर्द और औरत, सभी लोग जो इस जी। फील्ड में आना चाहेंगे, उनके भी चाइल्डहुड ड्रीम्स हो सकते हैं आपके जैसा मॉडल बनना.
तो इसके बारे में स्पष्ट के रूप में आप बता सकते हैं जी, आप कैसे उतरे और दूसरे लोग कैसे आ सकते हैं इसमें? जी। जैसे मॉडलिंग की बात की जाए तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है, आपके किड्स के लिए होती है, टीन एज के लिए होती है, मिस के लिए होती है, मिसेस के लिए भी होती है। देन उसके बाद आपका 60 प्लस जो होते हैं उनके लिए भी आपका सुपर सीनियर मॉडल जिनको बोला जाता है, वो भी एक कैटेगरी रहती है। तो मुझे जो है 40 की एज में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं मिसेस की कैटेगरी में थी, और ऑब्वियसली जब मैं मैरिड हूँ तो मैरिड अगर 25 की एज में कोई लेडी मैरिज हो जाती है मैरिड, तो फिर वो मिसेस की कैटेगरी में आती है। लेकिन मुझे शुरू में तो थोड़ा सा दिमाग में आया है कि और जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। दिल्ली में मेरा जो था दिवा क्वीन, दिल्ली दिवा क्वीन का जो मैंने विन किया था, देन उस टाइम जब मैं कंपटीशन के लिए गई वहां पे ब्यूटी पेजेंट शो में मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे उसमें, सबसे ज्यादा एज की मैं ही थी, 40 की एज की मैं ही थी, बाकी 18, 90, 25 जो मिसेस कैटेगरी की थी वो भी 25, 26, 27 मैक्सिमम थी, और मैं 40 की थी। तो मुझे उस टाइम देख के लग रहा था कि मैं सबसे बड़ी हूँ। लेकिन जब वो उन्होंने स्टार्ट किया, रैंप वॉक स्टार्ट किया, अपना उनका टैलेंट राउंड स्टार्ट हुआ, तो जैसे जैसे राउंड होते गए तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं, आई एम द बेस्ट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इनसे एज में बड़ी हूँ, और मैंने ड्रेसेस भी काफी कॉन्फिडेंटली वेयर की सारी, और वो सारी जब मॉडल्स मुझे बोल रही थी कि मैम यू आर लुकिंग फेबुलस, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मुझे और अच्छा लग रहा था कि नहीं, मैं सच में अच्छी दिख रही हूँ। तो ये बच्चे जब मुझे बोल रहे हैं तो मैं अच्छी ही दिख रही थी, तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली गई, और उसमें जब मैंने अपने राउंड क्लियर किए तब भी मेरा बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, फिर क्वेश्चन आंसरिंग राउंड में भी मेरा बड़ा अच्छा रहा, और उसमें भी मैंने जब विन किया, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मुझे उस टाइम तो मैं शॉक थी कि यस, मैंने कर लिया, मैंने विन कर लिया। मैंने क्योंकि उसमें कैटेगरी मिस और मिसेस की नहीं रही थी, उसमें सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको बराबर ही पार्टिसिपेट करना था। जैसे बाकी हमारे मॉडलिंग शो में होता है मिस और मिसेस की कैटेगरीज अलग रहती है, लेकिन जो दिल्ली में मैंने विन किया था उसमें मिस और मिसेस की कैटेगरी का कोई अलग से नहीं था, सबको एक ही राउंड पे करना था, और चाहे मिस भी विन कर सकती थी, मिसेस भी विन कर सकती थी। लेकिन मेरे लिए वो सबसे अच्छा मोमेंट था कि जो 19 और 20, 25 की एज की जो बिल्कुल अच्छी, सुंदर दिखने वाली, ग्लोइंग, जो आपको बताइए, अब जब 20 और 25 की प्लस की जो लड़कियां होती है वो एकदम ग्लो करने वाली होती है। हम लोग जैसे थोड़ा हमें हो जाता है एज के साथ, इस फैक्टर के चलते हमें बॉडी का भी थोड़ा फर्क पड़ता है, फेस पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैंने उनमें भी सब में मैंने विन किया मिसेस दिवा क्वीन का, तो मैं उस दिन तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया। और उस दिन मैंने अपने इंटरव्यू में जब कहा था, तो मैंने यही कहा था कि मैं ये पहले भी मानती थी कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आज मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज कहीं भी आपके किसी भी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपके रास्ते में नहीं आ सकती, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और आप, अगर आपको पता है कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, तो मुझे नहीं लगता कि एज कहीं भी आपको रोक सकती है। और आप चाहे 40 प्लस है, 45 प्लस भी हैं, तो आप पार्टिसिपेट करते हैं मिसिस कैटेगरी में, तो आपको लिया जाता है 45 की एज। मैक्सिमम जो ब्यूटी पेजेंट शो होते हैं मिसिस कैटेगरी के लिए 45 की एज रखी होती है, लेकिन कई ब्यूटी पेजेंट शो में 50 की भी होती है। अगर आप 50 प्लस हैं तो कुछ इसमें कैटेगरीज होती है तो 50 प्लस में भी होता है, बस 45 मिसिस कैटेगरी के लिए 45 मैक्सिमम जो होती है वो जनरली यही होती है। तो अगर आप 45 प्लस नहीं है, उससे पीछे है, तो आप कर सकते हो स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स रियली नाइस। अभी ये दोनों जेंडर्स के लिए है मैम, इवन मेन एंड वुमेन, इट्स ओपन फॉर बोथ? यस, यस मैम, like you know, यस, यस। yeah, if you can just let me know that. जी, मिस्टर कैटेगरी के लिए भी आपका 18 प्लस जो भी बॉयज हैं, और 45 की एज तक जो भी जेंट्स हैं, तो वो मिस्टर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। जी उसमें जी। उसमें जैसे मिस और मिसेस का होता है, तो बॉयज के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनका तो मिस्टर ही रहेगा वो, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, तो वो उनको मिस्टर का ही टाइटल मिलता है। जी। जी मैम, जी मैम। मैम अभी जब आप ये डिसीजन ले चुके कि मैं यहाँ पर मेरा टैलेंट दिखाए और हम्म, मैं कुछ साबित करूं, मुझे अच्छा लगता है, हम्म, तो चार चार पांच लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे हमारे पीठ के पीछे। तो हम्म, आप जब इस फील्ड में उतर के आए तो लोग जो आसपास है आपके, या दूर दूर के रिश्तेदार या फ्रेंड्स या एक्वेंटेंसेस, तो उनका क्या कहना था या उनका रिएक्शन कैसा था, और आप पर कैसा प्रभाव हुआ? क्या आप उनके बातें चुभा, आपको हर्ट करा, या आप सुन के भी यहाँ से छोड़ दिए और आप अपने रास्ते चले, तो क्योंकि आज आप सक्सेसफुल हैं?
जी। जी। जब मैंने स्टार्ट किया तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था तो मैंने ये किसी से भी शेयर नहीं किया था अपनी फैमिली के अलावा। अपनी फैमिली को, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को ही पता था, बाकी मैंने किसी को भी ये शेयर नहीं किया था कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा-सा ये था कि पता नहीं मैं विन कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, जो भी होगा, कोई बात नहीं, लेट अस सी, ट्राई करके देखते हैं। अगर अच्छा रहा तो सबके साथ शेयर करेंगे, नहीं अच्छा रहा तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस लेके फिर और आगे बढ़ेंगे, तब देन शेयर करेंगे। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम विन किया तो उसके बाद मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ बहुत खुश भी हुए, कुछ साइलेंट भी हो गए। अब साइलेंट हो गए तो उनके लिए अब हम दोनों तरीके से सोच सकते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगा, तब भी साइलेंट हो जाते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तब भी साइलेंट हो जाता है। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, जिसको मेरे साथ रखना है, दोस्ती रखनी है, तो उसे मुझ पे भरोसा भी करना पड़ेगा। और ठीक है, मैंने काफ़ी बातें सुनी भी, नेगेटिव भी काफ़ी सोसाइटी वाले बोलते भी हैं, और मॉडलिंग को चलते तो होता ही है। और जिस एरिया से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, हिमाचल, तो वो अभी भी यहाँ के जो लोग हैं इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं, उनको फ़िल्म सिटी और ये फ़ैशन इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, और उनके मन में अभी भी ये रहता है कई लोगों के कि मॉडलिंग जो है एक अच्छा प्रोफ़ेशन नहीं है, अच्छा लाइन नहीं है, उसमें मॉडल्स को पता नहीं कैसे-कैसे काम करना पड़ता है, क्या उनका वर्क प्रोफ़ाइल रहता है। तो वो मन में सबके रहता है नेगेटिव। और कुछ लोगों ने बोला भी, लेकिन मेरा वही था कि मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस है, मैं खुद के अब साथ हूँ और मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं फिर सोसाइटी की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि वही होता है कि अगर हम उनकी बातों को नेगेटिवली लेते हैं और हम स्टप एक रुक जाते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो फिर तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा। हम अपना डिसीज़न अपनी फैमिली और अपने आप लेने वाले हैं, तो हमें सोसाइटी का ज़्यादा मैटर भी नहीं करना चाहिए, जब हमें खुद को पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को सोचने लगे तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो मैं तो खुद पे भरोसा करती हूँ और मेरी फैमिली मुझ पे भरोसा करती है। यही मेरे लिए सबसे एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, और मैं इसके साथ ही हमेशा आगे बढ़ना चाहूँगी। और बस राधा रानी की कृपा रहनी चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता रहना चाहिए हमेशा, और आप लोगों का सबका प्यार और जो ब्लेसिंग है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब मुझ पे विश्वास करते हैं और मुझे ब्लेसिंग देते हैं। चाहे वो अंदर के मन से खुश होते हैं, चाहे बाहर-बाहर से खुशी दिखाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। अंदर से तो हम किसी का दिल देख नहीं सकते, कौन हमारे लिए खुश है, कौन नहीं। पर मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ कि ठीक है, कोई अच्छे से विश कर रहा है या मुझे अपनी बेस्ट विशेज़ दे रहा है, तो अच्छी बात है, मैं उनको लेती हूँ, पॉजिटिवली लेती हूँ। जी, एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। आपने बहुत खूब एक्सप्लेन किया है अपना जर्नी, और आप आगे कैसे जा रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे ही जाना है। जी। इट्स रियली नाइस। मैम, अभी आप ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आप वर्क लाइफ बैलेंस? तो आप एक टीचर भी हैं और आप एक मॉडल भी हैं, तो आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं? और एक अच्छी पत्नी भी है और एक माँ भी है, तो आप ये बैलेंस आप कैसे कर पाएंगे? क्या ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ उनका कंप्लेंट्स निकलते, दिस इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके, आई एम अनेबल टू मैनेज। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना करियर और अपना पैशन और अपनी फैमिली भी? जी। अब जैसे एज़ अ मदर की बात करूँ तो मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरा बेटा जॉब करता है, मेरी बेटी डॉक्टरेट कर रही है। तो बच्चे तो घर से बाहर ही हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं घर पे। तो मेरे हस्बैंड भी प्रिंसिपल हैं, तो हमारा प्रोफ़ेशन भी सेम है, और हमारे जो टीचिंग लाइन है उसमें टाइम इतना मिल जाता है कि हम 4 बजे तक फ्री होके अपने घर पहुँच जाते हैं, रेस्ट भी हो जाता है। और मैं जो अपने इवेंट्स अटेंड करती हूँ या किसी शोज़ में जाती हूँ, तो क्या होता है कि मैं जो हमारे हॉलिडेज़ होते हैं, उसमें जब छुट्टी का टाइम रहता है, मैं उसी टाइम के इवेंट्स को लेती हूँ। और कम से कम कोशिश करती हूँ कि मैं स्कूल से छुट्टियाँ कम लूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा छुट्टी पे हो जाऊँगी तो मेरे स्टूडेंट्स का भी उसमें लॉस होगा, तो मैं वो भी नहीं चाहती। लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो मेरे लिए मतलब ठीक है, अगर बैलेंस, अगर माइंडसेट है कि हमें करना है, तो वो सारी चीज़ें फिर हम मैनेज कर ही लेते हैं, जब दिमाग में सोच लिया कि करना है। तो हाँ, ये चीज़ें होती है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, टायर्डनेस भी हो जाती है, जॉब आते ही कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में मैं पहुँच रही हूँ दिल्ली से, और आते ही मैं 1-2 घंटे में रेडी होके मुझे स्कूल भी जाना है, पूरा दिन ड्यूटी भी करनी है, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे, शाम को आके रेस्ट कर लेंगे। ये माइंड में रहता है कि अगर अपना कम्फर्ट ज़ोन देखेंगे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और कर लेती हूँ। अब ईज़िली अब हैबिचुअल हो गई हूँ इस चीज़ के लिए। जी। यस डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। अभी एक सीक्रेट हम आपसे पूछेंगे। आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? यू हैव अ ग्लोइंग स्किन, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, तो with all the pressure around you, how you are able to maintain? Do you have any special diet?
एंड व्हाट इज द रेजिम दैट यू फॉलो, किस तरह आप अपने आप को मेंटेन करते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली एज वेल? जी। अब इंटरनल पहले मैं बात करूं तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ और अपना वर्कआउट करती हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक, एक्सरसाइज, योगा पूरा प्रॉपर करती हूँ। और डाइट में भी मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइड कम लूं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ, खाती सब कुछ हूँ, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाती हूँ। और मुझे लगता है कि आज मैंने कैलोरीज ज्यादा ले ली तो मैं वर्कआउट भी थोड़ा उतना बढ़ा लेती हूँ। अपना वॉकिंग में रहती हूँ, ज्यादा बैठती नहीं हूँ। इवन मेरी जो कलीग्स हैं तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि शिवानी मैडम तो कभी बैठते ही नहीं है चेयर पे, हमने उनको बैठते हुए देखा ही नहीं कभी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया है और मुझे क्लास में जाना है तो मुझे क्लास में एक तो आदत है कि मैं हमेशा ही चलते फिरते ही बच्चों के साथ लेक्चर शेयर करती हूँ। तो और वैसे भी जब फ्री टाइम मिलता है तब भी मैं वॉकिंग करती रहती हूँ। तो मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझे हंसते भी हैं और वो बोलते हैं कि अच्छी बात है, हम आपको देख के हमें भी आदत हो गई है वॉकिंग करने की। और अच्छी बात है हम कि बैठे एक चेयर पे बैठ के पढ़ाना। एक तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर मैं चेयर पे बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, बैठ गया है सब कुछ। और मैं जब खड़े होकर बच्चों को लेक्चर डिलीवर करती हूँ तो मुझे खुद में भी अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से अपना लेक्चर भी डिलीवर कर पा रही हूँ। और मेरी अब आदत बन गई है कि मुझे बैठना ही नहीं है। मैं 10 से 15 मिनट से ज्यादा अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ रुक गया है मेरी लाइफ में। तो मुझे चलता रहना अच्छा लगता है। और मैं वॉकिंग मतलब आफ्टर मतलब आप बोल सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद भी मैं 15 से 20 मिनट वॉक करती हूँ, लंच के बाद भी 15 से 20 मिनट वॉक करती हूँ, डिनर के बाद भी। आफ्टर एवरी मील मुझे 15 से 20 मिनट वॉक करना ही है। ये मेरा डेली रूटीन बन गया। और मैं सबके लिए यही रिकमेंड करूंगी कि कभी भी खाना खाने के बाद एकदम बैठे मत आप। और अपने थोड़ा डाइट पे तो हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जब हमने ये लाइन चूज की है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को मेंटेन भी करना है। क्योंकि अगर मैं एक मॉडल हूँ और मैं अपने आप को मेंटेन नहीं करती हूँ तो सामने वाला, ये हम भी बोलते हैं, वो सामने वाला भी ये बोलेगा कि कैसी मॉडल है, इसका फिगर देखा है, इसका कैसे खुद को मेंटेन ही नहीं किया इसने, कैसे किस टाइप की। ऐसा थोड़ी ना कि हमने एक बार टाइटल विन कर लिया तो हमारी जर्नी स्टॉप होगी। हमें जब इस लाइन में जब तक हम हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस तभी हाई रहेगा जब हमने अपने आप को वैसा खुद अच्छे दिखेंगे और सामने वाले को भी अच्छे दिखेंगे। जी। यस डियर, एक्सीलेंट मैम, आपने सीक्रेट शेयर कर दिया, दैट्स रियली नाइस। बस ऐसे ही नहीं बैठे रहना है, थोड़ा सा मूवमेंट रहना है बॉडी में, यू जी शुड जी जी वॉक, दैट्स रियली नाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल टेक्निक्स, मेडिटेशन भी आपने कहा, और जी खाने पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जी। थोड़ा थोड़ा खाना है, और थोड़ा फ्राइड थोड़ा। चीजों से थोड़ा दूर रहना है। जी। अभी देखिए मैम, थोड़े लोग क्या है, मीठा छोड़ नहीं सकते हैं, हम्म स्वीट्स, हम्म हम्म। तो आप उनके लिए ऐसा कोई टिप दे सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी 40s टच करते हैं तो उनको स्वीट ज्यादा खाना पसंद है, तो उनके मन पसंद का मिठाई खाना है। तो अगर हम्म। आप में भी ऐसा है खाने का शौक जो है, आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? एक छोटा सा टिप जी। मुझे दे दीजिए। मैं अपना एक सीक्रेट शेयर करती हूँ कि मुझे लंच टाइम के बाद तो कुछ मीठा अगर मैं ना खाऊं, थोड़ा सा भी कुछ ना खाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मील कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन बात वही आ जाती है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल तो करना पड़ेगा। खाओ पर थोड़ा खाओ। सिर्फ हमारे क्या जीभ का एक स्वाद है ना, बस उसके स्वाद के लिए थोड़ा खा लो। अगर चॉकलेट पूरा ना खा के एक पीस खा लो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो आपके लिए हार्मफुल रहेगी। कोई भी चीज अगर हम कम क्वांटिटी में खाएंगे तो वो हमारे लिए ठीक है। अगर ओवर ईटिंग करेंगे किसी चीज की तो वो तो, चाहे अगर हम बात करें कि फूड से ज्यादा खा ले तब भी ठीक नहीं है, खाना हम ज्यादा खा लेंगे तब भी ठीक नहीं है। तो वैसे ही मीठे की बात है, अगर आपको मन करता है तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा कर लीजिए, अपना टेस्ट चेंज करने के लिए। पर ये ऐसा नहीं कि पेट भरना है हमें खूब सारी। अगर मुझे वही बात आ गई कि गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो मेरे पास ऑप्शन है 4 या 5 गुलाब जामुन खाने का, तो मुझे पता है कि मुझे नहीं खाना है तो मैं हाफ खाऊंगी या एक बाइट लूंगी कि बस मुझे अपने टेस्ट लेना है, बस मीठा खा लिया बस। और बाकी तो अपनी सोच पे डिपेंड करता है ना, कि अगर आपने सोच लिया कि बस मुझे इतना ही खाना है तो पेट वैसे भर जाता है। ठीक है, पेट तो हमारा कभी भी वैसे नहीं भरता ना, हमारी आंखें और हमारा जब दिमाग से हमने सोच लिया कि हम, हाँ भर गया हमारा पेट, तो भर जाता है। हम एक चपाती खा के भी हमारा पेट भर जाता है। और कई बार जब मन से हम सोचते हैं कि नहीं हमें और खाना है तो हम 5 चपाती खा के भी हमारा पेट ऐसा लगता है खाली रह गया। तो सब दिमाग की सोच है कि अपने आप को कंट्रोल, अपने माइंड से कंट्रोल करना है कि हाँ मुझे खाना है पर थोड़ा थोड़ा खाना है सब कुछ। ठीक। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आप थोड़ा सा मीठा खा रहे हैं, दैट्स हम्म रियली नाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग खाना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं, फिर कभी कभी हम्म अवॉइड नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं, पूरा पेट मिठाई से भर देते हैं। तो गुड टेक्निक, थोड़ा थोड़ा खाए, ज्यादा नहीं, हम्म दैट्स रियली नाइस, जस्ट चख लेना थोड़ा बहुत। हम्म। जी मैम, अभी आप एक टीचर भी हैं, आप एक 8th 9th 10th 11th 12th क्लासेस आप उन बच्चों के साथ आप जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं।
तो आपका कनेक्शन कैसे है बच्चों के साथ? तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आपको कभी कभी ये भी पूछते होंगे, मैडम आप एक मॉडल भी है, एक्ट्रेस और एक डांसर भी है, तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद रिगार्ड टू योर पैशन, दैट इज एक्टिंग एंड मॉडलिंग एंड ऑल ऑफ दैट? जी, बच्चे हमेशा ही जो हम क्लास में जाते हैं तो पढ़ने के मूड में हमेशा नहीं बोल सकते कि हमेशा पढ़ने के मूड में रहते हैं। जब थोड़ा-सा फ्री टाइम होता है, जब उनके ऊपर ज़्यादा कोई एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर नहीं होता है, तो बच्चे कई बार खुद से सामने से बोलते हैं कि मैम आज पढ़ने का मूड नहीं, आज बात ही करते हैं। तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ उनसे और अपनी इस जर्नी के बारे में बताती हूँ और उनको मैं काफ़ी मोटिवेट भी करती हूँ कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा सभी को डॉक्टर बनना है, सभी को इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, एक एक्ट यू आर गुड एक्टर, आपके अंदर वो चीज़ है कि आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो, आप एक अच्छे डांसर बन सकते हो, एक अच्छे सिंगर बन सकते हो। तो आप इस अभी जो आजकल का टाइम है, तो इसमें आपके पैशन को और आपके जो भी आपके अंदर हुनर है, तो उसको आप कर सकते हो, उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो। हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि आपको मेहनत उस फील्ड में करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे मॉडल बनना चाहते हो, तो बहुत अच्छा आपके लिए स्कोप है। आजकल के टाइम में आप मॉडलिंग के साथ जो है ब्रांड शूट कर सकते हैं, आप एक्टिंग में जा सकते हैं, आप सॉन्ग्स कर सकते हैं, मूवीज़ कर सकते हैं, वेब सीरीज़ कर सकते हैं, एड्स कर सकते हैं, बहुत सारे इसको आप एज़ अ प्रोफ़ेशन भी इसको ले सकते हैं। जैसे अब मेरे लिए ये पैशन है और मुझे जब कहाँ कहीं चांस मिलता है तो मैं जाती हूँ, ज़रूर जाती हूँ और एक एज़ ए पैशन के तौर पे उसको लेती हूँ और हर चीज़ को एन्जॉय करती हूँ। तो वैसे ही मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप भी कर सकते हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं कि मैम इसमें क्या सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है? तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, सुंदर दिखना भी आप बोल सकते हो ज़रूरी है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। स्टेज पे जो आपका एक कॉन्फिडेंस है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, स्टेज पे जो आपने रॉक अगर तभी कर सकते हो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छा एक वॉक कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है बड़े कॉन्फिडेंटली दे सकते हो, अपनी इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से अपने अच्छे शब्दों में दे सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा से अपने इंटरव्यू में जब अपना इंट्रोडक्शन देती थी तो माय सेल्फ शिवानी कौशल, आई एम बिलॉन्ग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आई एम participate in Mrs. category and I am 40 years young. तो मेरा ये होता था आई एम 40 इयर्स यंग। तो बहुत अच्छा उनको भी सुनने में लगता था और मुझे भी अपना एक कॉन्फिडेंस लगता था कि मैं 40 मोस्टली बोलते हैं कि 40 इयर्स ओल्ड। तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आई एम 40 ईयर ओल्ड, मैं बोलती थी आई एम 40 इयर्स यंग। और आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी एज मुझे कहीं पीछे खींच रही है, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं और आगे बढ़ रही हूँ। एज के साथ-साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, तो बच्चे बहुत खुश भी होते हैं और कई बच्चे बोलते भी कि यस मैम हमारा भी मन है तो आप हमें गाइड करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, आप अपने एक थोड़ी स्टडीज़ जो है आपके लिए जो मेन आपका स्टडीज़ रहना चाहिए। स्टडीज़ के बाद जो है आपको आप कर सकते हो इसको एज़ अ प्रोफेशन आप इसको ले सकते हो। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मैम अभी हम मॉडलिंग करियर में या एक्ट्रेस बनने में थोड़ा सा, यू नो व्हाट दे से, थोड़ा सा डर लगता है इस फील्ड में आना। पता नहीं किस तरह के लोग मिलते हैं। तो हमने बहुत 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 सारे कहानियां सुने, नेगेटिव स्टोरीज, कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, नेगेटिव ऐसा कुछ हुआ है आपके इस सफर में ना? हाँ, बोल सकते हैं कि एक डर तो बना रहता है। जब हम स्टार्टिंग में तो मेरी फैमिली मेरे साथ जाती भी थी, मेरे हस्बैंड साथ जाते थे, कभी मेरा ब्रदर मेरे साथ जाता था। लेकिन फिर मेरे लिए वही हो गया कि मैं कब तक इनको भी बॉदर करती रहूँगी। तो फिर हाँ, इस इंडस्ट्री में आप हर किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीज़ होती है कि इस इंडस्ट्री में हर तरीके के लोग हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कुछ लोग जो मॉडल्स हैं उनको मतलब एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ का तो मेरे मन में भी स्टार्टिंग में डर था और थोड़ा फैमिली वाले भी जैसे हस्बैंड भी बोलते थे कि पता नहीं कैसे लोगों के बीच में आपको जाना है। तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे रखा कि मुझे ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है कि जो जिनको मैं थोड़ा जानती हूँ। वो रिकमेंड करेंगे तो मैं फिर आगे जाऊँगी और मॉडलिंग के टाइम में मैंने फिर थोड़ा एक अंदर अपने आप पर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं ठीक है। सामने वाले का पता चल जाता है, वैसे भी लेडीज़ में सिक्स्थ सेंस होती है, कोई सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, वो उसकी क्या इंटेंशन है, इतना तो हम लोग समझ ही जाते हैं। तो वो चीज़ का रहता है। तो फिर अब तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं अकेली भी ट्रैवलिंग अकेले ही करती हूँ। यहाँ से दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, कहीं भी जाना हो तो मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ।
और साथ में मेरी टीम भी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे साथ काम करते हैं। हम जो प्रोजेक्ट्स में साथ ही काम करते हैं। तो अब तो वैसे भी मन से वो डर निकल गया है कि नहीं ठीक है। फिर भी एक बीइंग अ लेडी मुझे इस चीज का थोड़ा सा अपने आप के लिए रखना पड़ता है कि नहीं, ऐसा कोई भी अननोन पर्सन है तो उसको ऊपर मुझे जल्दी से रिलाई नहीं करना है, और बड़ा उसको सोच समझ के अपना कोई भी स्टेप लेना है। तो वो चीज के लिए मैं लड़कियों को भी जो मिस कैटेगरी में भी जाती हैं या मिसेस कैटेगरी में भी जाती है, मुझसे भी पूछती हैं जाने के लिए किसी इवेंट में, तो मैं उनको यही चीज बोलती हूँ कि बेटा आप लोग पार्टिसिपेट करो, लेकिन किसी अननोन के साथ, क्योंकि आप किसी के मन को नहीं समझ सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो सामने से बड़ा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आपको बड़ा सोच समझ के किसी की गाइडेंस में ही ये काम करना है। तो मैं तो जो बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे मेरे इसमें नॉन में किसी का अच्छा इवेंट होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जहां या कई बार मैं खुद जाती हूँ एज ए ज्यूरी, जाती हूँ एज ए वीआईपी गेस्ट, जाती हूँ एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट जाती हूँ, तो मैं उन बच्चों को बोलती हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि मैं खुद भी वहां रहूंगी, तो आपको टेंशन कोई नहीं है। तो आपको ट्रेवलिंग चलो आपको अपनी करनी है, मुझे अपनी ट्रेवलिंग करनी है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जिस प्रेजेंट में आप जा रहे हो, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो, तो उसका मुझे भी नॉलेज है कि भी अच्छी टीम है और ऐसे लोग कोई भी नहीं है उसमें जो कि आपको एक्सप्लॉइट करें। तो इस चीज के लिए अवेयर हमेशा ही रहना चाहिए, चाहे मिस है मिसेज है, चाहे मैं फीमेल के साथ साथ मेल के लिए भी बात करना चाहूंगी कि एक्सप्लॉइटेशन मेल और फीमेल दोनों का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब अपने आप के लिए इस फील्ड में जाने से पहले आप इस चीज को भी माइंड सेट रखें कि आपको अवेयर रहना है, अपने आंख कान सब खोल के रखने हैं और ऑब्जर्व करना है लोगों को कि कैसे टाइप के लोग हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपको वो मिस यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है जी। यस डियर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सही तरीके से शेयर किया है अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस, एंड यू गिवन अ मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स, एंड यू ये भी आपने मेंशन किया अबाउट मेल एंड फीमेल, बोथ बोथ शुड बी सेफ। कि भाई सिर्फ फीमेल्स पर होती है कुछ ऐसा, कभी कभी मेल के ऊपर भी कुछ ऐसा नेगेटिव हो सकता है, असर हो सकता है। सो यू नो गो वेरी कॉशियसली, बी वेरी केयरफुल, सही लोगों के ऊपर भरोसा रखना है, और अपना सिक्स सेंस को यू नो हमेशा यू शुड कीप इट अलर्ट, यू नो मीट द जी। राइट काइंड ऑफ पीपल, ऑब्जर्व अच्छा करना है, इनसे क्या बात करना है, कितने दूर तक हम किसी को अपना जिंदगी में चांस देना है बात करने का या प्रोफेशनली इन्वॉल्व करने का। दैट्स रियली नाइस। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहेंगे, जी। तो आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। अगर मिसेस शिवानी कौशल कर सकते हैं तो क्यों हम नहीं कर सकते, क्यों बिल्कुल। मैं क्यों नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। जी। सो आप एक रोल मॉडल है हमारे लिए। हम ये जानना चाहेंगे आपकी जिंदगी में आपका रोल मॉडल कौन है। जी। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, तो मेरे सबसे पहले रोल मॉडल मेरी मदर हैं, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, मतलब अब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो, लेकिन वो हर फील्ड में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और इतने अच्छे से हर फील्ड में सेट हो जाते हैं और मतलब अपना बेस्ट देते हैं। तो उनको देख के हमें लगता है कि वही चीज जैसे आपने बोला कि अगर मिसेस शिवानी कौशल मॉडल बन सकती है सक्सेसफुल, तो हम क्या क्यों नहीं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी मदर जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी हर फील्ड में अपना बेस्ट देते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज को मतलब जाते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं हर चीज में, अच्छे अपना बेस्ट देते हैं, तो मैं भी दे सकती हूँ। एक तो वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे मेरी मदर से मिला है, मेरे रोल मॉडल वो है। और अगर मॉडलिंग की लाइन की बात करूं, तो जैसे मैं डांस अच्छी डांसर भी हूँ, एक एक्टिविटी इंचार्ज रह चुकी हूँ अपने स्कूल में, और डांस के लिए बच्चों को काफी लेके भी जाती हूँ, आउट ऑफ स्टेट भी लेके गई हूँ मैं काफी, और जजमेंट के लिए भी मैं जाती हूँ डांस के लिए। तो मैं एक दिन एक इवेंट में एज ए जजमेंट पे गई थी, डांस के जजमेंट पे, तो वहां पे मॉडलिंग का भी साथ में था। तो मॉडलिंग में जो एक ज्यूरी के लिए एक मिसेस कैटेगरी के लिए एक मैडम आते हैं, तो वो भी टीचर थे बाय प्रोफेशन। तो जब वो आते हैं, उनकी एंट्री होती है, उनका वेलकम होता है, तो मैं उनको देख रही हूँ कि ये अगर मिसेस कैटेगरी में ये जजमेंट पे आए हैं और इनके सिर पे क्राउन है, इन्होंने ये शैशे पहना हुआ है और ये क्राउन विनिंग लेडी है, तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जैसे मेरे लिए अगर आप बोल रहे हैं कि मैं से शिवानी कौशल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो बस वही चीज मेरे दिमाग में भी आई कि अगर ये मैडम
अपने जॉब के चलते-चलते अगर इस फील्ड में इतना आगे जा सकते तो मैं भी जा सकती हूँ। कि मैं भी कर सकती हूँ और मैंने बस मेरे लिए वो एक रोल मॉडल थे मैडम और आज भी मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि वो मेरे लिए एक मोटिवेशन बन के आए। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी सबके लिए एक मोटिवेशन बनूँ और सबके लिए रोल मॉडल बनूँ कि यस वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और कोई अगर मुझे देख के कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो मुझे और अच्छा लगता है। कोई मुझसे पूछता भी है, मेरे कलीग्स ने भी कुछ ने मुझसे पूछा कि मैम हम करना चाहेंगे तो हम कैसे-कैसे करेंगे? आप हमें गाइड करेंगे? यस मैं आपको पूरा गाइड करूँगी और मुझे अच्छा लगता है। कि वो भी करना चाहते हैं। वो शायद मुझ में वो चीज़ वो पॉज़िटिविटी देखते हैं, पॉज़िटिव व्यू उनका अगर है मेरे लिए तभी वो चीज़ को करना चाहते हैं ना। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स रखेगा तब तो वो नहीं करना चाहेगा, तो मुझे भी पीछे हटाएगा कि नहीं गलत बात है ये हमें नहीं करनी है। तो अच्छा लगता है कि नेगेटिव के साथ पॉज़िटिव भी बहुत रिएक्शंस मिलते हैं और काफ़ी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और मुझसे गाइडेंस माँगते हैं तो मैं उनको ज़रूर गाइड करती हूँ। जी। Oh, nice. That's really very nice. So, my dear friends, here's a wonderful role model. If you would love to enter into the modeling field, irrespective of age, you could get connected to the right kind of people. हम ये पूछना चाहेंगे मैम आपसे, आप अपने स्किन को कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? यू वुड लाइक टू गिव अस द सीक्रेट्स या उसको सीक्रेट ही रखेंगे या शेयर कर पाएंगे आज हमारे साथ? नहीं, नहीं, मैं तो अपनी लाइफ़ का हर पार्ट को शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अगर सामने वाला जानना चाहता है कि हाँ, बताएँ तो मुझे सीक्रेट रख के वही होता है ना कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, तो मेरी ब्यूटी जो रहेगी वो मेरी रहेगी। अगर कोई मुझसे अगर टिप्स पूछता है तो मैं पक्का बताती हूँ उनको कि मैं एक तो होम रेमेडीज़ करती हूँ, अपने जैसे उपटन लगा लेते हैं हम और बाकी स्किन केयर भी करती हूँ। तो कुछ जैसे अभी दिल्ली में पीछे गई थी एक शूट पे तो उनका जो सैलून वाले थे उन्होंने मेरा हाइड्रा फेशियल किया तो उन्होंने बताया कि एज़ ए मेकअप मॉडल ही मैं उनके लिए गई थी तो उन्होंने मेरा आफ्टर बिफोर का मुझे बताया अपने क्लाइंट्स को। तो उन्होंने जैसे मुझे कुछ स्किन केयर भी बताया तो मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ। और साथ के साथ मैं अपने जो होम रेमेडीज़ को भी करती हूँ कि हाँ, मुझे क्या-क्या करना है, अपने स्किन को क्लीन रखना है। जब हम मेकअप करते हैं क्योंकि जब हम किसी इवेंट में जाते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप करते हैं तो हम नहीं ये श्योर नहीं होते कि वो प्रोडक्ट कैसे वाले यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी स्किन काफ़ी मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेस अपना ही लगा के जाऊँ, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करूँ, भई ऊपर से वो आप थोड़ा-सा टचअप कर दो दैट्स इट और मुझे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ओवर मेकअप से मुझे लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अजीब-सी दिखती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेकअप अपना ही यूज़ करूँ और अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करूँ। फिर उसके बाद जैसे ही इवेंट से फ्री होते हैं, कई बार तो हमें पूरा-पूरा दिन लग जाता है। और जैसे फ्री होते तो मैं जल्दी से अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ और अपना जेल या कोकोनट ऑयल है उससे मसाज कर लेती हूँ अच्छे से और नाइट में भी अच्छे से मसाज करके क्लीन करके फेस सोती हूँ। तो वह ये चीज़ है कि हमें अब इस इंडस्ट्री में तो फेस वैल्यू है। अगर आपका फेस अच्छा है, तो आप अच्छे दिखेंगे तभी आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप अच्छे नहीं दिखेंगे आपका फिज़िक अच्छा नहीं है, आपका फिगर अच्छा नहीं है, आपका लुक अच्छा नहीं है, तो कोई आपसे क्यों इंस्पायर होगा? क्यों आपको चांस देगा? तो वो चीज़ आपको सब चीज़ को मेंटेन करके रखना है। तो स्किन के साथ, फिगर के साथ आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आप रूड हैं, तब भी आपसे कोई ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो हाँ, ठीक है, इस लाइन में आप ज़्यादा ओपन भी नहीं हो सकते, क्योंकि अब मैं जैसे मैं मिसेज़ कैटेगरी में जाती हूँ, तो जैसे दिल्ली वगैरह में जाती हूँ, तो वहाँ पे एक मेरी इमेज बनी हुई है कि जो मिसेज़ हिमाचल हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट मतलब कि मैं जब बाकी लोगों से एक लिमिटेड बात करती हूँ। हमारे साथ जब काफ़ी लोग सेल्फीज़ भी लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। एज़ अ सेलिब्रिटी अगर हम जा रहे हैं, तो वो फ़ोटोज़ लेते हैं, बच्चे भी आते हैं, बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, कई बड़े लोग भी होते हैं, तो वो फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, तो फ़ोटोज़ तो हम क्लिक करवा लेते हैं। फिर अगर कोई हमें पूछता है कि मैम क्या हम उसको अपनी स्टोरी पे डाल दें? तो मैं बोलती हूँ, "नहीं, सॉरी प्लीज़, स्टोरी पे नहीं डालेंगे आप और अगर किसी ने डालना भी है, तो मुझे पहले बताएँ। ऐसा नहीं कि भई आप किसी भी गलत साइट पे उसको डाल दें। तो वो चीज़ का उनके वहाँ वो काफ़ी चीज़ ये फैल चुकी है। दिल्ली में इस नाम से जाना जाता है, मिसेज़ हिमाचल जो है स्ट्रिक्ट है और मतलब ठीक है, बात करना उनसे अच्छा लगता है लेकिन मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी है, कि हर कोई आपके साथ इतना ओपन ना हो जाए कि कहीं भी आपको वो सोशल मीडिया पे आजकल आपको पता ही है कि बहुत टाइप के ये होते हैं चीज़ें स्कैंडल्स होते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ को कहीं भी यूज़ कर दिया जाता है। तो उस चीज़ में हमें थोड़ा एहतियात बरतनी पड़ती है कि ठीक है, हम एक तो हमें लगता है कि कोई अच्छा नहीं है पर्सन क्योंकि हमें लग ही जाता है पता है कि कोई किस तरीके से चिपक रहा है या कैसे है ना, तो वो चीज़ों को मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ।
और अगर उनके साथ फोटो क्लिक करवानी भी है तो फिर कई तो नंबर मांगते हैं मैम, नंबर तो मैं नंबर कभी शेयर नहीं करती किसी से भी। अगर नंबर प्रोफाइल के रिगार्डिंग किसी को बात करनी है तो वो फिर लग जाता है पता, तो फिर मेरे जो को स्टार हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप ले लीजिए उनका नंबर, और फिर अगर लगेगा तो फिर मेरे साथ शेयर करते हैं, अदरवाइज मैं नंबर भी शेयर नहीं करना पसंद करती, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा होता है। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ कि नहीं ठीक है, हमें एक संभल के चलना है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक बार रेपुटेशन खराब होगी तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते। तो अपनी रेपुटेशन को बना के रखना है और अच्छे तरीके से डिसेंट वे में हमें इस इंडस्ट्री में रॉक करना है। जी दैट्स रियली नाइस, क्योंकि इतना सच्चाई के साथ आपने शेयर किया, जितना हद तक किसी को एंटरटेन करना है उतना ही करना है, अपने बाउंड्रीज रखना है, उनका जी सम्मान भी करना है, लेकिन फायदा उठाने नहीं देना है। ये जी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैसेज सभी के लिए है। दैट्स बिल्कुल। रियली गुड, दैट्स वंडरफुल मैम। हम्म, मैम, अभी आप हिमाचल, मिसेस हिमाचल क्वीन हैं आप, तो आप हिमाचल छोड़ के अब दिल्ली में भी आ चुके हैं, भाग ले चुके हैं, बहुत सारे प्राइजेस विन कर चुके हैं, अवार्ड्स विन कर चुके हैं, टाइटल्स विन कर चुके हैं आप। कोई दूसरे स्टेट्स में, ऐसे साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया, लाइक ऑल ओवर इंडिया, आप वहां पर भी गए हैं या आगे जाने वाले हैं, इंटरनेशनल जा चुके हैं? तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आपका सफर शुरू हो गई है, अब जी जी कहाँ तक जाने वाली है, थोड़ी सी बता दीजिए। जी। अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट मैंने हिमाचल से किया था, लेकिन उसके बाद मैंने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, इवन मैं दुबई भी जा चुकी हूँ एज ए मेकअप मॉडल। जैसे मेकअप मॉडल्स के लिए जो प्रोफाइल सिलेक्ट होता है उसमें मिस मिसेस कैटेगरी के लिए सिलेक्शन होना था प्रोफाइल का, तो मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ था मिसेस कैटेगरी के लिए। तो उसमें जो मेकअप आर्टिस्ट है वो इंटरनेशनल मेकअप जैसे वेस्टर्न मेकअप के ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, तो अपने साथ अपना मेकअप मॉडल लेके जाते हैं, क्योंकि जो फॉरेनर्स की स्किन होती है और जो इंडियन की स्किन का जो टेक्सचर रहता है तो वो डिफरेंट रहता है। तो वो एज ए अपना मेकअप मॉडल साथ लेके जाते, तो मेरा वहां पे भी एज ए मेकअप मॉडल सिलेक्शन हुआ था, तो मैं दुबई भी जा चुकी हूँ। और मुझे वहां पे भी बेस्ट मॉडल का अवार्ड भी मैं दुबई से ले चुकी हूँ। और काफी जो बॉलीवुड स्टार जो हमारे एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, उनसे भी मेरे काफी अवार्ड्स हो चुके हैं। और अच्छा लगता है कि हम अब, मुझे लगता है कि दिल्ली तो अब मेरे लिए ऐसा है कि जैसे हिमाचल ही में मैं ट्रेवल कर रही हूँ। तो मेरा हर मंथ एक टूर लग जाता है दिल्ली का, एक कई बार 2 बार भी लग जाता है। तो मुंबई से भी काफी जैसे ऑफर्स आ रहे हैं, हमें ब्रांड शूट के लिए भी ऑफर्स आ रहे हैं। तो जहां मुझे लगता है कि ठीक है मेरा कंफर्ट जोन भी है थोड़ा सा, मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, अपने आप को सेफ फील करती हूँ, तो मैं जाती हूँ वहां पे, ब्रांड शूट कोलेबोरेशन में करती हूँ। और अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हर फील्ड में अपने आप को देखना है। अगर बात आए कि मुझे सॉन्ग्स करने में, सॉन्ग्स भी करती हूँ, अगर मुझे वेब सीरीज में मौका मिलता है मैं वहां पे भी जाती हूँ, ब्रांड शूट भी करती हूँ, चाहे क्लॉथिंग का है, चाहे अपना ज्वेलरी शूट है, मैगजीन्स का शूट है, सारे शूट्स मैं कर चुकी हूँ। और अब मैं इंटरनेशनल लेवल के लिए भी जाना चाहती हूँ, मिसेस इंटरनेशनल टाइटल भी विन करना चाहती हूँ। और उसके लिए मेरा अपना प्रोसेसिंग में हो गया, मेरा मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उसके भी ग्रूमिंग स्टार्ट हो रही है। और जल्दी ही 2025 में मैं मिसेस इंटरनेशनल का भी जो है, मेरी उम्मीद है मुझसे, और मैं चाहती हूँ कि मैं विन करूं इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना एक क्राउन, एक या दो या तीन चार, जितने भी मैं क्राउन ला सकती हूँ मैं लाऊंगी और मैं करूंगी। और जैसे जैसे जिस जिस जो जो मुझे फ्रेम मिलेगा, जो जो मुझे स्टेज मिलेगा, मैं उस पर रॉक करूंगी। और यस, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी जी। यस मैम, आपके साथ हैं हम, और शुभकामनाएं हैं, हमारा आपका प्रोसेस जो चल रही है अभी मिसेस इंटरनेशनल का। वी विश जी यू ऑल द बेस्ट एंड वी थैंक यू होप मैम। दैट यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्राइजेस, एंड आई लव द कॉन्फिडेंस, आप जिस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है हमें। दैट्स रियली नाइस। जी जी जी। कोई भी जो डाउन है, लो है, या जो आपके साथ बैठे हैं ना, बैठते थोड़ी देर बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका भी जो हाँ बिल्कुल। high level of energy will increase, their energy हम्म, levels will increase to a higher level. That's really nice. मैम, अभी हमने ये भी सुना है आपके बारे में, आप सभी को एक समान आदर करते हैं, चाहे वो आपके it could be like the support staff in your school or college, or it could be somebody lower than you. तो आप जी सभी को राधे राधे कहकर आप सभी का सम्मान करते हैं। थोड़े लोग ऐसे इगोइस्टिक रहते हैं, तो दे डोंट केयर
to the lower level of the people who are working below us. तो आपका जी। जो स्वभाव है, नेक है, हमने ये सुना है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, आप कैसे इतना डाउन टू अर्थ कैसे रह पाते हैं आप? Over to जी, अगर मैं अपने वर्क प्रोफाइल की बात करूँ तो जो मेरा जॉब जहाँ मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे जो भी हमारा सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, तो अब तो ऐसा बन गया है कि बच्चे भी सामने से आते हैं, जैसे मैं अपना व्हीकल पार्क कर रही होती हूँ, तो बच्चे दौड़ के आते हैं, मैम राधे राधे। और टीचर्स को भी मैं राधे राधे से ही विश करती हूँ। गुड मॉर्निंग भी बोलती हूँ, गुड मॉर्निंग राधे राधे सर, गुड गुड मॉर्निंग राधे राधे मैम। लेडीज स्टाफ के लिए तो मैं राधे राधे ही बोलती हूँ, जेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग सर राधे राधे करके। और वो भी मुझे अच्छे से राधे राधे का ही जवाब देते हैं। और मेरे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, तो वो भी खुद से आके बोलते हैं मैम राधे राधे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब राधे राधे बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक पॉजिटिव वाइब्स जो दे पा रही हूँ किसी को। और वो बड़े जब एक चीयर अप होके स्माइलिंग फेस के साथ राधे राधे बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वाओ, कितना अच्छा है, कितना अच्छे से ये हमारा दिन की शुरुआत हो रही है कि हम राधे राधे कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, दौड़ के आ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो प्राइमरी विंग होता है, एलिमेंट्री वाले साथ में ही एक कैंपस में है, तो वो बच्चे जिनको मैं टीच नहीं भी करती हूँ, वो भी आते हैं, राधे राधे बोलने आते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छी बात है ना, हम किसी किसी अच्छी चीज को स्प्रेड कर पा रहे हैं, ऐसे थॉट्स को स्प्रेड कर पा रहे हैं जिससे कि सबके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स होंगी। क्योंकि अगर हम किसी के कोई अगर हमारे पाँव भी छूता है, तो हम उसको गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि बेटा राधे राधे बोलने से तुम्हें क्या एक अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, हम सब एक अच्छे इंसान हैं सबसे पहले। इंसान होना और एक अच्छे इंसान होने में बस यही फ़र्क होता है कि हमें अपने से छोटा किसी को नहीं समझना है। ऐज में कोई मुझसे छोटा है तो क्या हो गया? है तो एक इंसान ना। अगर वो उसका वर्क प्रोफाइल, उसका जो डेजिग्नेशन मुझसे कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है? तो अगर कम क्वालिफ़िकेशन की वज़ह से वो उसका जी रैंक जी। लो है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे छोटा है। तो हमें उसको ऐसे ट्रीट करना है कि उसका रिस्पेक्ट नहीं करनी है। तो हमें रिस्पेक्ट, अगर हम वही बात आ गई ना, अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा। तो अगर मैं राधे-राधे बोल रही हूँ, वो भी मुझे राधे-राधे बोल रहे हैं। अब कई बार मैं अपने ध्यान में अभी आ ही रही हूँ, मैंने देखा भी नहीं, तो वो सामने से बोलते हैं, "राधे-राधे मैम।" तो मैं एकदम से मुड़ के देखती हूँ, "राधे-राधे बच्चे, राधे-राधे आंटी।" जो भी है, सबको बोलते हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे क्लास 4 है या कुछ है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्लास 4 है, कुछ भी है। तो मैं बड़े प्यार से गले लग के उनको विश करती हूँ। जब छुट्टियाँ होती तब भी उनसे अच्छे से गले मिल के उनको बाय करती हूँ कि चलो छुट्टियों के बाद मिलेंगे अब हम। या कोई भी हमारा जैसे लोहड़ी है या दिवाली है, तो उसपे भी अच्छे से उनको विश करूँगी गले लग के। वो मुझसे गले लगते हैं, बाकी स्टाफ के हाथ गले भी नहीं लगते, मुझसे गले लगते हैं वो। क्योंकि उनको शायद कुछ अपनापन लगता है, तो वो कंफर्टेबल होते हैं मुझसे गले लगने के लिए, तो मैं भी उनको अच्छे से हाथ बढ़ा के उनका स्वागत करती हूँ कि हाँ, आप मुझसे गले मिल सकते हैं। तो मेरे लिए तो सब एक बराबर है और सब भगवान की संतान है। और एक अच्छा इंसान होना, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, पर आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान हो। वही आपका एक बेसिक रूट जो है, इंसान होना और एक अच्छा इंसान होना। आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, तो आपके साथ लोग बात करना अच्छा लगेगा उनको, और वो अच्छे मोटिवेट भी होंगे, उनके एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर कोई मुझसे बात करता है, तो उसमें नेगेटिव थॉट्स ना जाए, वो खुश होके जाए कि यस, उसमें एक वो एनर्जी आनी चाहिए कि मैंने मैम से बात की, तो मुझे बड़ा अच्छा अच्छा फील हुआ। वो स्माइलिंग फेस के साथ, एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उठना चाहिए, और दोबारा वो फिर से आए। कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करे। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ तक उनकी हेल्प कर पाऊँ, मैं करती हूँ। चाहे फाइनेंशियली है, चाहे मॉरल सपोर्ट है, चाहे कोई डिसीजन लेना है, या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मैं तो बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि बेटा, अगर आपके पेरेंट्स अगर आपकी बात नहीं सुन रहे, तो मैं बैठी हूँ ना, आप मेरे से बात करो, मुझे बताओ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। तो बच्चे बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई मुझे इस काबिल समझता है कि मैं उनकी कहीं हेल्प कर पाऊँ। तो वही बस अच्छा है मेरे लिए कि सब बराबर है, भगवान के इंसान है सब, और सब अच्छे हैं। मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे हैं। खुद से अच्छा होना सबसे बड़ी बात है। जी। Excellent, excellent, ma'am. That's really very nice. I like the way you shared it. अभी हम ये जानना चाहेंगे मैम आपके बारे में, आप स्वतंत्र को लेके बात करेंगे, लाइक इट्स कॉल्ड एज फ्रीडम इन इंग्लिश। नाउ हम्म। भारत को तो स्वतंत्रता बहुत साल पहले मिल चुका है, कम से कम 75 ईयर्स पहले मिल चुकी है आजादी। जी जी। तो आज के दिन क्या हम लोग सब आजाद है अपने विचारों से, अपने कर्मों से जो काम करते हैं? तो आजादी के बारे में या फ्रीडम के बारे में
in India for men and women? What does freedom mean to Mrs. Shivani Kaushal? जी, अब फ्रीडम की बात बोली जाए तो हम अपने विचारों से ही स्वतंत्र हो पाते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव माइंड हैं, तो चाहे आपको कितनी फ्रीडम मिली है, लेकिन आप अपने विचारों को स्वतंत्र तभी कर पाते हैं, जब आपकी अपनी सोच अच्छी है। जब जो चीज़ मुझे खुद के लिए पसंद नहीं है, तो मैं सामने वाले के लिए वो चीज़ क्यों करूँगी? अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे राइट्स मिलें, तो मैं किसी के राइट्स का वो उसको खत्म नहीं कर सकती। जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, बोलते हैं ना ड्यूटीज़ और राइट्स सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जहाँ मेरी फ्रीडम के चलते अगर कोई बोले कि यस ये तो मेरा राइट है, उस चीज़ के लिए मुझे लड़ना है, मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ और मुझे उसके लिए लड़ना है, ये मेरा राइट है। तो क्या आपका राइट है तो कहीं आपके कर्तव्य भी क्या आप अपने कर्तव्य पूरे निभा रहे हैं? क्या अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं? जहाँ आपको बोला जाता है कि पब्लिक प्लेस में या कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको अच्छे से एक वेल बिहेवियर रखना चाहिए कि कैसे आप ट्रांसपोर्ट में अगर बात ली जाए कि आप सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, बस में या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या आपकी वो एक मॉरल ड्यूटी नहीं बनती कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार है या कोई लेडी है वो कैपेबल नहीं है खड़े होने के लिए, तो क्या जेंट्स का फर्ज़ नहीं बनता कि उसको सीट दे दें? तो वो चीज़ का वो एक मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो अगर आप अपने मॉरल वैल्यूज़ को मैं वही बता रही हूँ कि अगर आपकी राइट्स हैं, तो ड्यूटीज़ भी हैं। तो वो ड्यूटी को आप पर्टिकुलर कहीं लिखा नहीं गया कि आपको बड़ों का सम्मान करना है या मेल या फीमेल हाँ, बोल सकते हैं कई बार जेंट्स ऐसे ये चीज़ बोल देते हैं, क्यों लेडीज़ का बोलते हैं हम हर चीज़ में बराबर हैं, तो क्यों उनको सीट दें? या क्यों उनको ज़रूरत है? वो कई असहाय नहीं है, बोलते हैं कि नारी आज की नारी अबला नारी नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो सब कुछ कर सकती हैं। तो कई लोग जो होते हैं ना कि नेगेटिव थॉट वाले, वो हर चीज़ को घुमा के बोल देंगे, कि नहीं क्यों उनको स्पेशल ट्रीटमेंट हम क्यों दें? कोई बात नहीं। मुझे लगता है और मैं भी ये चीज़ बोलती हूँ कि हाँ, आज की जो लेडीज़ हैं वो किसी मामले में पीछे नहीं है, ठीक है? तो जेंट्स की कहीं भी उनको उसकी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। अगर वो सपोर्ट करते हैं जेंट्स फिर भी ठीक है, नहीं करते तब भी आज की जो नारी है ना वो इतनी स्वावलंबी है, इतनी कॉन्फिडेंट है, इतनी सेल्फ डिपेंडेंट है कि वो अपने लाइफ़ को अच्छे से चला सकती है। हाँ, कहीं क्या होता है कि लेडीज़ को डोमिनेट किया जाता है। काफ़ी फील्ड में किया जाता है। अब वो है कि किसी फील्ड में वो उनके हाथ बंधे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि उनको राइट पूरा प्रॉपर मिलना चाहिए, जो उनका है अधिकार उसको आप छीन नहीं सकते। तो वो कई बार बाहर मन से भी वो चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर इंसान अच्छे से अपने दिमाग की सोच के साथ एक इक्वालिटी के साथ रहें, चाहे आप धर्म के संबंधित बोल सकते हैं कि अगर हमें धर्म की स्वतंत्रता है, तो उसका हमें गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। हमें अगर हम अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं, अगर हम अपने धर्म को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो हमें बाकी धर्मों को भी इज़्ज़त देनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर मैं हिंदू हूँ, तो मैं किसी मुस्लिम पे या किसी सिख पे या किसी जैन पे, किसी पे भी मैं ऐसा नहीं कर सकती कि यस मेरा धर्म बहुत अच्छा है, आपका धर्म अच्छा नहीं है। क्यों नहीं? सबका अपने-अपने धर्म के ऊपर पूरा विश्वास है और ठीक है, हमें अपने धर्म के साथ बाकी के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं अब बात करूँ ये जो हमारा इस टाइम कुंभ का चल रहा है, प्रयागराज का महाकुंभ जो चल रहा है, तो मैं काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ उसमें भी देख रही हूँ कि कुछ जो साध्वियाँ हैं उन पे जो है बोला जा रहा है, टिप्पणियाँ की जा रही हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, वैसा क्यों कर रही हैं और वही सेम चीज़ें वो जेंट्स कर रहे हैं तो उनके लिए कोई मतलब उनको फ्रीडम है, वो कर सकते हैं, लेडीज़ नहीं कर सकती। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले वो किसी का पास्ट कुछ भी रहा हो, अगर वो अच्छे अध्यात्म की तरफ जाना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि उसको पीछे उसके पास्ट को लेके उसको पीछे खींचा जाए कि नहीं तुम पहले ऐसे थे तो तुम अब भी अच्छे नहीं बन सकते। हर एक को स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, तो आप लोग क्यों किसी के लिए कोई डिसीज़न लेने के लिए समझते हो अपने आप को समर्थ कि भई मैं जो बोल रहा हूँ या एक जेंट्स जो बोल रहा है लेडीज़ के लिए वो सही है। लेडीज़ कभी गलत मतलब हमेशा गलत होती हैं, जेंट्स कभी गलत नहीं होती। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने दिमाग से स्वतंत्रता के असली मीनिंग को समझो कि हम इक्वल हैं। सबको अपना-अपना कर्म करना है और इंसान किसी को भी जजमेंट देने के लिए इतना सक्षम नहीं होता है, क्योंकि हम दूसरे के लिए बहुत अच्छे जज होते हैं। और अपने का खुद को हमें पता नहीं होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर एक का कर्म का हिसाब-किताब भगवान रख रहे हैं। आप अपना कर्म कीजिए, अपना अच्छा कर्म कीजिए और स्वतंत्रता को अच्छे से एन्जॉय कीजिए। किसी की स्वतंत्रता को छीन के आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख नहीं सकते, कभी भी नहीं रख सकते। तो आपको इक्वल लेके चलना है सबको, जो आपको राइट्स मिले हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, वो सब निभाओ अच्छे से। यही हमारा एक स्वतंत्र भारत का एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ है और सबको निभाना भी चाहिए ये चीज़ को। जी।
जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. You have shared it very well. You've explained freedom in a very beautiful way. That's really nice. Thank you so much. मैम, अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, खुद के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? What do you love in शिवानी कौशल? जी, मैं सबको ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर हम खुद से प्यार करेंगे, तो तभी सामने वाला हमें प्यार करेगा। सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना है। क्योंकि अगर हम खुद से हम ही प्यार नहीं करेंगे, तो सामने वाला हमसे क्यों कोई प्यार करेगा? जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हैं और हमारी सोच भी एक पॉजिटिव वे में जाती है। तो मैं यही मान के चलती हूँ कि मुझे हमेशा खुश रहना है और बाकियों को खुश रखना है और मेरी तरफ से मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अगर किसी का अच्छा ना कर पाऊँ, तो बुरा भी ना करूँ और मैं एक अच्छी सोल हूँ। भगवान ने मुझे बहुत अच्छा एक दिल दिया है और सबको हेल्प करने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और बस मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि भगवान ने मुझे अगर समर्थ बनाया है किसी चीज़ के लिए, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वो चीज़ किसी को अगर मैं दे सकती हूँ, तो मैं दूँ और मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के रहना चाहती हूँ और मैं हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा लगता है कि अगर सामने से कोई अगर आपको बोलता है अच्छा पॉजिटिव अगर आपको रिएक्शन दे रहा है, तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, कोई मेरे बारे में पॉजिटिव सोचता है। अब नेगेटिव थॉट्स को तो मैं वैसे निकाल देती हूँ, क्योंकि जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो उसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता है। उसमें सब कुछ हमें एक नेगेटिविटी को निकालना है और पॉजिटिविटी को लेना है। तो मेडिटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें पॉजिटिव ही रहना है। जब पॉजिटिविटी अगर हम दिमाग से खुश होंगे, तो हमारे पूरे बॉडी पे, हमारी सोच पे, हमारे फेस पे, हर चीज़ पे उसका पॉजिटिव ही रिएक्शन होगा। तो मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और अपनी लाइफ़ को पॉजिटिव ही रखूँगी और हमेशा कोशिश करूँगी कि सबको पॉजिटिविटी ही दे पाऊँ और सब पॉजिटिव रहें। बस यही मेरा मैसेज है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. अभी हम ये पूछना चाहेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ. तो इसके बारे में आप अपने तरफ से शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी मैम, अभी हम ये इस पर फोकस करना चाहेंगे मानसिक परिस्थिति के ऊपर, क्योंकि जी। हमेशा हमें हमने देखा है बहुत सारे लोग मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके होते, या ज्यादा सोचते हैं, या मैं ये हासिल नहीं करा जिंदगी में, या करना चाह रही हूँ तो हो नहीं पा रहा मुझसे. तो ज्यादा से ज्यादा फेल हो चुके हैं बहुत सारे अटेम्प्ट्स में. तो अपना मन पर ज्यादा असर होगा वो. तो आप मेंटल हेल्थ को लेके या मानसिक परिस्थिति को लेके, आई वुड लाइक यू टू गिव अ गुड message to be strong mentally, how to maintain good mental health. हाँ जी, जैसे बात कर रहे हैं आपकी मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ वही बात बोल रही हूँ कि पॉजिटिव वे में लेना है हर चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, आपने किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया और आप उसमें फेल हो गए या आप वो अचीव नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, तो उसमें आपको अपने आप को फेलियर नहीं सोचना है कि मैं फेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है, आपको उस चीज़ का सबक लो, जो आपको कुछ कमियाँ रह गई हैं, उसको इम्प्रूव करो, उसको पॉज़िटिव वे में लो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे एक और चांस लेना चाहिए और मैं अब जो भी मुझ में कमियाँ रह गई है, जो कहीं भी कोई रह गई प्रॉब्लम, उसको मेरे को अब ठीक करना है और किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में अगर कोई भी चीज़ हम लेंगे, तो वो हमारे पे नेगेटिव ही असर देगा। तो वो अपने मेंटल हेल्थ को हम तभी अच्छा रख सकते हैं, जब हम माइंड से स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने के लिए मेंटली जो आप बोल सकते हैं कि मानसिक तौर पे स्वस्थ रहना, तो वो मेडिटेशन सबसे अच्छा एक तरीका है कि आप मेडिटेशन करो। जब भी आपको लगे कि आप बहुत स्ट्रेस हो गए, एक तो फ़ोन कम से कम यूज़ करें आप, कि फ़ोन कम यूज़ करने से क्या होगा कि आपका जैसे हम कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं, पॉज़िटिव चीज़ें देखेंगे, तो हम पॉज़िटिव ही हमारे थॉट्स भी पॉज़िटिव हो जाएँगे। और अगर हम नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो हम हमारे थॉट भी नेगेटिव हो जाएँगे। जैसे कई बच्चे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, तो वो कुछ ऐसे गेम्स खेल रहे हैं जिसमें वॉयलेंस है बहुत ज़्यादा। तो वो अगर वो हर वक़्त वही चीज़ें करते रहेंगे तो उनके वो दिमाग में वही चीज़ें सेट हो जाएँगी। तो फ़ोन को एक अच्छे तरीके से यूज़ करें और अपने ऐसी सोसाइटी में उठे-बैठे जहाँ पे आपको पॉज़िटिविटी मिले। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाओ, जहाँ पे आपको नेगेटिविटी मिल रही है और आपकी फेलियर पे वो और ज़्यादा आपको ये कर रहे हैं कि आप तुम फेल हो गए हो, अब कैसे होगा? तो ये चीज़ों को आपको मतलब अपने सोसाइटी को दिमाग में रखना है कि हमें किन लोगों के साथ उठना-बैठना है। जहाँ से आपको पॉज़िटिविटी मिल रही है, वहाँ आपको वहीं रुकना है, वहीं बात करनी है, उन्हीं के साथ शेयर करना है। क्योंकि लोग जो है आजकल आपकी किसी वीकनेस को जो है
मजाक उड़ाते हैं आपका। आप अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो बहुत कम 100 में से कोई 2 या 4 लोग ही होंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे। लेकिन जो आप बोल सकते हैं कि 96% लोग जो है वो उसको हाँ तुम फेल हो गए, अब चलो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो हो गया हो गया, अब तुम्हारे पास तो चांस ही नहीं रहा, अब तो तुम्हारी लाइफ खत्म होगी। तो ये चीजें क्या होती है कि इंसान के दिमाग पे और ज्यादा स्ट्रेस डाल देती हैं, और जब मेंटली अगर स्ट्रेस होगा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे जो होते हैं, कई हम बच्चे को सुनने में आता है हमें कि उनका रिजल्ट निकला, जो वो चाह रहे थे गोल अचीव करना, उसको नहीं फुलफिल कर पाए तो वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, उनको लगता है कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी हमें समझेगा नहीं। तो वो चीज को मैं बोलना चाहूंगी कि एक तो बच्चों के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ, तो अगर बच्चे आपके कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी मतलब वो आगे किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, और अगर लगता है आपको कि उनको एक तो मॉरल सपोर्ट दो, पूरा उनको पॉजिटिव वे में उनको एनकरेज करो कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, कर सकते हो, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन फ्री होके काम करो, अपना बेस्ट दो। आप अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छा ही आएगा। और अगर आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको फिर भी उस चीज के लिए भी मेंटली एक सेटल रहे पहले माइंड में कि अगर कुछ रहेगी कमी तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार उसको पूरा कर लूंगा। अगर बच्चों को उनके साथ फ्रेंडली रहो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, कि बच्चों को अगर लगे कि हमें एक ऐसा जोन है हमारे पास, ऐसे कुछ पर्सन्स हैं जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में जाने का मेन कॉज यही होता है कि उनको लगता है कि कोई हमारे पास है नहीं जिसको हम बता सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी, जो टीन एज के बच्चे हैं उनको तो स्पेशली ध्यान दो, अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे ध्यान दो। वो चुप रहना शुरू नहीं कर दिया है उसने, अकेले चुपचाप अपने रूम में बैठा रहता है, ज्यादा बात नहीं करता है, तो आप उस पे नोटिस करो कि क्यों ऐसा कर रहा है। वो खाने पीने में कुछ लापरवाही कर रहा है, खा नहीं रहा है अच्छे से, हंस के बात नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो एक ऑब्जर्वर है वो मदर होती है, टीचर से भी ज्यादा। एक जो फर्स्ट टीचर तो मदर ही होती है, तो वो एक्टिविटीज समझ जाती है। तो अगर आपको कभी भी लगता है आपके बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दो। आजकल की जो बिजी लाइफ में मुझे पता है कि पेरेंट्स के पास टाइम कम होता है अपने बच्चों को देने के लिए, पर जब भी आप अपना वर्क प्रोफाइल से थोड़ा भी फ्री हो पाते हैं तो अपने बच्चों को टाइम दो, उनके साथ थोड़ा फन भी करो, कि बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ हम अपने मदर फादर से नहीं, अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो वो चीज के लिए मेंटली स्ट्रेस हमें तभी होगा जब हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा जिससे हम बात नहीं कर सकते। तो हमेशा अवेलेबल रहें अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स के लिए, कि वो आपसे शेयर कर पाए। और सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझ सकता है, या फिर कोई नहीं है आपके पास जो आपको पॉजिटिव वे में समझेगा, तो सबसे अच्छी चीज मेडिटेशन करो। शांत बैठ जाओ आंखें बंद करके, भगवान के साथ बात करो, अपने आप से बात करो, अपने जो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट होते हैं, आप हमारे अंदर भी, तो उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, और खुद से बात करो कि कोई बात नहीं मैंने कर लिया, कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट चांस लूंगा। और उसी चीज को पॉजिटिव वे में लेते जाओगे, मेडिटेशन करोगे, तो वो नेगेटिव चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, और आपके अंदर सिर्फ एक पॉजिटिविटी रह जाएगी जो कि आपके मानसिक संतुलन को और मानसिक स्थिति को एकदम स्टेबल कर देगा। और जब आपकी जो मानसिक परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, तो आप हर फील्ड में जो है अपने फेलियर को भी एक सक्सेसफुल, एक स्ट्रेंथ बना के, अपनी कमजोरी ना बना के एक स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ सकते हो। ठीक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यू शेयर दैट वेरी वेल, थैंक यू सो मच। मैम, पर्यावरण को लेके थोड़ा सा आपके मन में क्या बातें हैं? पर्यावरण को कैसे सेफ रख सकते हैं हम सब लोग मिलकर? क्या करना है हमें? आपके तरफ से आपका ओपिनियन हम जानना चाहेंगे। जी। जैसे पर्यावरण की बात की जाए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो पोल्यूशन की वजह से, सबसे ज्यादा पोल्यूशन ही मेन कॉज है हमारा। कि आज जो हमारे इसमें क्लाइमेट में एकदम से धूप इतनी तेज हो रही है, बारिश इतनी तेज हो रही है, ठंड इतनी तेज हो रही है। तो पहले के टाइम में मुझे नहीं लगता कि जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे दादा परदादा थे, कि वो कभी सनस्क्रीन भी लगाते होंगे, क्योंकि यूवी रेज उतनी हार्मफुल नहीं थी, क्योंकि ओजोन लेयर काफी अच्छी थी उस टाइम। और अब आज इतना पोल्यूशन हो चुका है कि ओजोन लेयर हमारी डैमेज हो चुकी है काफी हद तक। और वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारे पे डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, तो वो सारा पोल्यूशन की वजह से है। और पोल्यूशन को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जो हमें हेल्पफुल रहते हैं वो हमारे जो ट्रीज है। तो बड़े बड़े सिटीज में मैं जाती हूँ जब, तो देखती हूँ कि ट्रीज कहीं है ही नहीं, बस वो आर्टिफिशियल ट्रीज लगा दिए जाते हैं कुछ सोसाइटीज के अंदर। तो उनको थोड़ा सा लगता है कि हरा हरा दिखना चाहिए। पर आई एम ब्लेस्ड कि मैं हिमाचल में रहने वाली हूँ, और हमारी चारों तरफ ग्रीनरी होती है, और हमारी जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, बहुत ही ज्यादा प्योर है। और यहाँ पे पोल्यूशन
अभी बोल सकते हैं कि बहुत कम है। बड़ी-बड़ी सिटीज़ के चलते यहाँ पे बहुत अच्छे हम एक क्लाइमेट में रहते हैं। तो चलो अब हम वो डिसाइड हम नहीं कर सकते कि अब किसी को बड़ी सिटी में रहना, वहाँ पे उसका जॉब प्रोफाइल वहाँ पे है, तो वो शिफ्ट नहीं कर सकता हिमाचल में। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएँ। मेरा मानना है कि अपने बर्थडे पे आप हज़ारों रुपए वेस्ट कर देते हो एक रेस्टोरेंट में जाके किसी को पार्टी देने के लिए, शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत सारे पैसे आप वेस्ट करते हो। तो चलो करो, मैं बोलती हूँ कि आजकल का टाइम शो ऑफ का भी है कि भई करना है। एक सोसाइटी में एक अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको पार्टीज़ भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक काम तो आप कर सकते हो कि आप अपने बर्थडे पे, अपने हर एक फैमिली मेंबर के बर्थडे पे 1 ट्री लगाएँ। एक-एक ट्री अगर हमारे घर में 5 फैमिली मेंबर है, तो एक साल में 5 का बर्थडे होगा तो 5 ट्री लगेंगे, तो वो 5 ट्री आज एक प्लांट है, कल को ट्री बनेगा। तो जितने ट्री हम लगाएँगे, तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी। हमारा क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमें जो पॉल्यूशन से लड़ने का थोड़ा-सा एक सहारा मिल जाएगा। और मेरी तरफ से तो एक अच्छा गिफ्ट भी अगर बोलें, तो किसी को परफ्यूम देने की बजाय एक ट्री अगर ये एक प्लांट किसी को गिफ्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। क्योंकि वो ट्री में जब उस प्लांट में कोई फ्लावर्स आएँगे या उसकी ग्रीनरी को देख के, वो इतना अच्छा फ़ील होगा कि आपके आपकी बालकनी में रखा है या इंडोर प्लांट है, कोई उसको रखा है, तो आप उसको देख के आपको हमेशा ही एक पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। फूलों को देख के आप हमेशा किसी का मूड भी सैड होगा ना, अगर फूलों में एक बगिया में जाके बैठ जाएगा, वो अपने आप चीयर अप हो जाएगा। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? हम छोटे-छोटे प्लांट्स लगाएँ, अपने सराउंडिंग हम मानती हूँ कि बड़ी-बड़ी सिटीज़ में इतना एरिया खुला नहीं होता है, हमें फ्लैट्स में भी लोग रहते हैं, तो आपके पास बालकनी है, आपके पास इंडोर प्लांट्स लगाने की फैसिलिटी है, आप वो छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हो। और ठीक है, आप व्हीकल्स यूज़ करो, मैं नहीं बोलती व्हीकल मत यूज़ करो, पर जैसे अब दिल्ली है, मुंबई है, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में मेट्रोज़ का काफ़ी अच्छा है चैनल, तो आप उसको यूज़ करें, अपने व्हीकल को ना यूज़ करके। मैं तो अब दिल्ली जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेट्रो में ही ट्रैवल करूँ, कि एक तो टाइम की सेविंग हो जाती है कि दिल्ली की ट्रैफ़िक मुंबई की ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, तो एक तो आपकी ट्रैफ़िक से थोड़ा-सा आपको निजात मिल जाती है, साथ में पॉल्यूशन भी अब एक ही उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, एक बस में 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और एक गाड़ी में एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम जहाँ तक कोशिश कर सकें, जहाँ हमें थोड़ा पास के एरिया में जाना है तो वॉकिंग डिस्टेंस है तो पैदल चले जाएँ, साइकिल यूज़ कर लें, ज़रूरी नहीं है हमें स्कूटी उठानी है या हमें गाड़ी लेके जानी है। तो छोटी-छोटी अपनी हैबिट्स बना लो कि हम अपनी तरफ से हम ये नहीं बोल सकते मेरे एक करने से क्या होगा, पर एक-एक करके ही या बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है, तो एक-एक की कोशिश से ही शायद हम कुछ अपने पॉल्यूशन को कम कर सकें, अपने पर्यावरण को जो है सुरक्षित कर सकें, क्योंकि ये पर्यावरण हमारे लिए है, अगर हम इसको सेफ रखेंगे, तो हम ही खुश रहेंगे। और अगर हम इसको बिगाड़ देंगे, तो उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। जी, जी मैम, that's really nice. Thank you so much for that beautiful message with regard to the environment. That is really nice. अभी हम ये जानना चाहेंगे शिवानी मैम को गुस्सा कब आता है? अगर आता है तो कब आती है? जी। मैं अपनी अगर वीकनेस बोलूँ, तो मेरे यही वीकनेस है कि वैसे मुझे गुस्सा बड़ा कम आता है, पर जब आता है, तो बहुत ज़्यादा आता है। इतना आता है कि बस मैं चाहती हूँ कि उस टाइम मेरे से कोई बात ना करे। अगर मेरे गुस्से के टाइम कोई मुझसे बात करेगा ना, तो फिर मुझे नहीं खुद पे कंट्रोल नहीं मैं कर पाती कि मैं उसको क्या बोल दूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरी फैमिली में मेरे बच्चों को भी पता है, मेरे फ्रेंड्स को भी पता है कि अगर मुझे गुस्सा है, तो वो मुझसे थोड़ा दूर रहते हैं। तो थोड़ा टाइम फिर मैं क्या करती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ, जब गुस्सा आता है। क्योंकि मुझे जब गुस्सा मैं बोलती हूँ ना, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस शायद वही है कि मुझे एकदम गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है, तो बहुत आता है। वैसे मैं गुस्सा करती बहुत कम हूँ, लेकिन आता है, ह्यूमन बीइंग हूँ ना, तो बोलते हैं कि अच्छाई के साथ बुराइयाँ भी हैं, तो मेरी सबसे बड़ी बुराई यही है कि मुझे गुस्सा जब आता है, बहुत ज़्यादा आता है, पर मैं उस पे कंट्रोल करती हूँ, शांत रह जाती हूँ, आँखें बंद करके बैठ जाती हूँ, अकेले रहती हूँ थोड़ा टाइम, फिर उसके बाद मैं खुद शांत हो जाती हूँ। और अगर मेरे गुस्से में कोई मुझसे ज़्यादा बात करेगा, तो मुझे और गुस्सा आता है, तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जो मुझे समझते हैं, वो इस चीज़ को लेके चलते हैं कि अब गुस्सा आ गया, तो अब इनसे बात मत करो, अपने आप थोड़े टाइम में अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, तो बात करेगी। बस ये चीज़ है, तो मुझे लगता है कि गुस्सा सबसे बड़ी बुराई है इंसान में, क्योंकि गुस्से के चलते हम किसी को ऐसे शब्द बोल देते हैं कि किसी को हर्ट हो जाता है और बोलते हैं ना कि जीभ में कोई हड्डी नहीं है, पर हड्डियाँ तुड़वाने की हिम्मत रखती है। वो चीज़ है कि उस टाइम गुस्से में जो हमारी ज़ुबान से कोई शब्द ऐसा निकल गया कि हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ़ में, लेकिन गुस्से में हमने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि उस सामने वाले को लगे कि अब हमारे मन के अंदर क्या है, वो कोई नहीं समझ सकता। जो हमारी ज़ुबान से हमने बोला,
जब हम किसी बच्चे को भी बड़ा प्यार करते हैं, बेटा, पुत्र, बड़े अच्छे-अच्छे शब्द बोलते हैं उसके लिए, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं ना। लेकिन अगर हम उसको गाली निकाल देंगे तो उसको लगेगा मम्मा तो हमें प्यार ही नहीं करती, या मैडम तो हमें प्यार ही नहीं करती। तो हमारी जुबान जो है ना, वो गुस्से में बहुत गलत बोल जाती है। तो गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और अपने पे सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, जो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। कभी-कभी नहीं कर पाती हूँ, फिर मैं उसको कर लेती हूँ मेडिटेशन के साथ। जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े हॉनेस्ट है, सच्चाई से के साथ आपने शेयर किया कि जब मैं गुस्से में होती हूँ मेरे से बात ना कीजिए। कम, आई कैन रेजोनेट विद यू। कभी कभी मुझे भी ऐसी जी, गुस्सा सडनली आती नहीं, अगर आ गए तो मैं किसी से बात करना नहीं चाहती, अगर बात किया तो इट विल तो बिगड़ जाती है बिगड़, बात। हाँ, हो जाता है। इसीलिए हाँ, मैं गुस्से में किसी से बात ही नहीं करना चाहती। तो आई कैन रेजोनेट विद व्हाट यू शेयर। थैंक यू सो हुँ, मच फॉर शेयरिंग दैट मैम। अभी जी। आपके हाथ में एक जादू चढ़ी है, जादुई चढ़ी है, और आप तीन चीज मांग सकते हैं उस जादुई चढ़ी से। क्या मांगेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये माँगूँगी कि हमारी दुनिया में सबको जो है भरपेट खाना मिले, सबको रहने के लिए मकान मिले और सबकी वो जो बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफिल हो जाए और हर एक बच्चे को उसका माँ-बाप का साया हमेशा उसके ऊपर बना रहे, कि वो एक कॉन्फिडेंटली ग्रो कर सके। और बस ये खुशहाली चाहती हूँ कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, शुद्ध रहे, जिससे कि हम तो जैसे-तैसे अपना कर रहे हैं, ज़िंदगी चला रहे हैं, पर आने वाली जो हमारी जनरेशन है, तो उसके लिए भी हम कुछ ऐसी चीज़ करके जाएँ कि वो भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को स्पेंड कर पाएँ, अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। ऐसी ये चीज़ें सिर्फ़ इतने हम सेल्फ़िश ना हो जाएँ कि खुद के फ़ायदे के लिए हम अपनी आगे की जनरेशन के लिए खड्डा खोद के जाएँ कि उनको नुकसान हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक तो प्रॉस्पेरिटी रहे, अच्छी भावना हो सबकी, पॉज़िटिविटी के साथ सब रहें और सबको भरपेट खाना मिले और सबको सर छुपाने के लिए एक छत मिले। बस यही चाहूँगी भगवान से और सब में जो है एक सद्भावना रहे और धर्म के प्रति तो अपने कर्म को अच्छे शुद्ध रखें सब, कि ये लेके चलें कि मेरे कर्म मेरे साथ हैं और मुझे अच्छे ही कर्म करने हैं, चाह के भी कभी किसी का बुरा नहीं करना है। जी। Yes, dear. Thank you, ma'am. Thank you so much for the main round of the interview. Thank you very much. अभी एक छोटी सी राउंड है कॉल्ड एज द रैपिड फायर राउंड। एक 5 मिनट और लगेगी, अगर आपके इजाजत दे दिए तो हम वो हुँ। 5 मिनट यूज करेंगे। It was really a fulfilling session for me to conduct this session as the host on the International Fab Talks. I would love to know her likes and dislikes on the rapid fire round, right? So join us, friends, to welcome our celebrity and guest on the rapid fire round, which will just take another 5 minutes. मैम, आपका सबसे फेवरेट फूड, जो स्ट्रीट वाला फूड रहता है ना, जब हम बाहर निकलते हैं तो आसपास कुछ ऐसे जो स्ट्रीट फूड रहती है, तो आपका सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? पानी पूरी, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। आपका सबसे फेवरेट कलर? पिंक, अभी पिंक में अलग अलग किस्म के शेड्स होते हैं, तो आपको कौन सी वाली पिंक? बेबी पिंक, बेबी पिंक। सबसे फेवरेट टीचर कौन थे मैम? हमारी +1 +2 के मैडम थे, जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, उनका नाम था मिसेज़ इंदु मैम। वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं और उनको देख के मैं टीचर बनना चाहती थी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। जी। जब आप छोटे थे, तो जब आप खेलते थे दूसरे बच्चों के साथ, कौन सा खेल अच्छा लगता आपको? व्हाट टाइप? मुझे हाँ जी, मुझे वो टापू जिसको बोलते हैं, अ, अब क्या बोलेंगे उसको? टापू हमारे टाइम में होता था कि उसको लाइन्स लगाते थे और उसमें फिर वो फेंकते थे, एक सिक्का जैसा फेंकते थे, उसको पाँव के साथ पुश करके आगे-आगे हमें रोटेट करना था, उसको स्टापू बोलते थे। अब मुझे नहीं पता कि बाकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, वो खेलना मुझे बहुत पसंद था। जी जी, जी। आज मैंने समझ लिया कौन सा गेम है वो। हम खेलते थे, हाँ। छोटा सा पत्थर ऐसे फेंकना है और हाँ, उसके बिल्कुल, ऊपर बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। जंप हाँ। करके जी, जाना जी, है। जी। दैट्स रियली नाइस। हाँ, आजकल हाँ। नहीं दिखाई देती है ये लोग, जो ये खेल नहीं खेल रहे हैं ना आजकल, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं खेल रहे बहुत हैं आजकल, कम तो हो बच्चों को चुका है। मोबाइल और गैजेट्स के साथ ही खेलना पसंद है। जी जी जी। तो जब हुँ। वो खेल खेलते थे हम, तो थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट होता, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज जैसी भी हो जाती थी शायद, हुँ, राइट हुँ, हुँ, हमारे? हुँ। जी, जी, जी। मैम, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आपका सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सा है? उपमा। आप खुद बना लेते हैं? जी, बनाती हूँ। अच्छा बनाती हूँ। मसाला ऐसा, और जस्ट प्लेन उपमा लाइक? वेजिटेबल विद मूँगफली वगैरह डाल के, कड़ी पत्ता डाल के, वेजिटेबल, फुल ऑफ वेजिटेबल।
That's really nice. Are you mommy's pet or daddy's pet? मम्मा। Mama. आप 12 महीनों में आपको कौन सा महीना अच्छा लगता है? मुझे दिसंबर अच्छा लगता है। मुझे मेरा बर्थडे मंथ मई पसंद है। आप डेट बता सकते हैं कौन से डेट में आप? 8 में। 8th में। Wow, that's जी। really nice. So we'll wish you on जी। your birthday. That's great. अभी 7 दिनों में, हफ्ता 7 दिनों से बनती है, तो in all the 7 days of the week, which day do you like the most? वेडनेसडे। आपका फेवरेट म्यूजिक? गजलें। आपका फेवरेट मूवी? दुश्मन। मैम, जिंदगी में कभी कभी फर्स्ट चांस में हम हार जाते हैं। क्या आप सेकंड चांस में बिलीव करते हैं? एक इंसान को या किसी को भी सेकंड चांस भी देना चाहिए? जी, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी कुछ कमियाँ रह गई हों, तो उसको सेकंड चांस ज़रूर मिलना चाहिए। तो उस सेकंड चांस में वो खुद को बहुत इम्प्रूव करके सक्सेसफुल हो सकता है उस फील्ड में। जी। मैम, एक सेंटेंस में बताइए, आप एक सुंदर सा दिन कैसे वर्णन कर पाएंगे? जिस दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से शुरू हो, सूर्य अर्घ देके हम अपने दिन की शुरुआत करें और एक अच्छी प्रेयर के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ और अपने दिन को पूरा प्लान आउट करके जाएं और अपने सारे काम अच्छे से करके शाम को जब हम अपना वर्कआउट, वॉक, मेडिटेशन सब करके बेड पे जाएं, तो हमें ऐसा लगे कि आज हमने बहुत अच्छा किया, हमने किसी का आज बुरा नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया। तो वो डे मुझे लगता है कि हमारी लाइफ के बहुत अच्छा डे होता है कि जब हम किसी के लिए किसी के काम आ सके और हमारी तरफ से किसी का बुरा नहीं हुआ। Wow, I like this answer. Beautiful answer. अभी सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू डिफाइन अ डे इन वन वर्ड? ब्यूटीफुल डे, एक सुंदर सा दिन, बस एक शब्द में आप कैसे वर्णन कर पाएंगे? बस एक ही शब्द में। जिस दिन हम फुल एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंट रहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ, वो मेरे लिए पॉजिटिविटी, सबसे हम ये वर्ड पॉजिटिविटी। लेंगे, पॉजिटिविटी। जी, पॉजिटिविटी, यस। दैट्स वंडरफुल, दैट्स एक्सीलेंट। मैम, आप हिमाचल से हैं, तो हमने सुना हिमाचल इज ऑलवेज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड होती है वहां पर। तो आपका कौन सा मौसम अच्छा लगता है? हमारे यहाँ पे हिमाचल में फरवरी मार्च का जो एक सीजन रहता है, तो उसमें बसंत बोलते हैं उस टाइम को। तो वो बड़ा ही अच्छा प्लेजेंट वेदर होता है, हर तरफ फ्लावर फ्लावर होते हैं, ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो मुझे वो मौसम बहुत अच्छा लगता है, फरवरी मार्च का मंथ। जी जी। अभी टूरिज्म होती होंगी वहां पर बहुत, हिमाचल में बहुत जी सारे जी जी लोग वहां पर जी। आके एंजॉय करते हैं जब छुट्टियां मिलते हैं। तो आप हिमाचल के बारे में एक दो चार शब्द शेयर कीजिए। हिमाचल जो है, एक तो देवभूमि बोला जाता है यहाँ पे। बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, शक्तिपीठ है यहाँ पे, जो लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। जिसमें हम बात करें कि कांगड़ा ब्रजेश्वरी टेम्पल है, चिंतपूर्णी माता मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, नैना देवी मंदिर है, वैष्णो देवी, ये सारे जो हिमाचल में ही आते हैं। एक तो देवभूमि की वजह से मैं बोलना चाहती हूँ कि टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ के जो क्लाइमेट है, हिल्स जो हैं, ग्रीनरी जो है, उससे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और गर्मियों के टाइम में इतना ज्यादा यहाँ पे क्राउड होता है कि हम अगर सड़क पे जाएं तो हमें बाहर की गाड़ियां, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और ये पंजाब की गाड़ियां, इतना ट्रैफिक होता है कि हम लोगों को, लोकल जो वहाँ के लोग हैं, उनको भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम में टूरिज्म जो हमारा जो ज्यादा इसी वजह से है कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, गर्मियों के फेवर का बहुत ज्यादा अच्छा है। और साइड जो सीनिक ब्यूटी है बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो टूरिज्म के अगर यहाँ पे बोला जाए तो यही चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और आना चाहिए। मैं सबको वेलकम करूंगी कि आप लोग हिमाचल जरूर आएं, साल में एक बार तो जरूर आएं और यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी है उसका लुत्फ उठाए। और यहाँ पे जो जो भी हमारे शक्तिपीठ है, देवभूमि में जितने भी मंदिर हैं, उनको आके दर्शन जरूर करें। आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। और यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं, मन के बहुत ही भोले हैं और सादगी वाली जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी को एक ठहराव जब चाहिए हो, तो आप हिमाचल जरूर आए। तो मैं सबको वेलकम करना चाहूंगी हिमाचल के लिए कि आप आए प्लीज हिमाचल। How sweet. That's really nice. Thank you so much for that beautiful message and the beautiful explanation about Himachal Pradesh. Thank you very much. मैम, अगर आपसे ये प्रश्न हम करें, कुछ ना कुछ त्याग करना है अभी जिंदगी में, तो एक जी। चीज त्याग करना है,
वो कौन सी चीज आप त्याग करना चाहेंगे? मेरा गुस्सा। ओ, मैं वही सोच रही थी, अगर आप मुझे ये प्रश्न पूछते, आप खुद मुझे उल्टा प्रश्न ये पूछे, मैं मेरी गुस्सा, आई विल से द सेम आंसर, सो दैट्स रियली जी नाइस, जी जी थैंक यू जी फॉर जी। दैट। कैन वी नो योर ब्लड ग्रुप प्लीज? ओ पॉजिटिव। Wow, that's really great. यूनिवर्सल Universal डोनर। donors, yeah, universal यस donors. यस यस। शिवानी मैम, अगर आपके सामने भगवान जी प्रकट हुए, क्या पूछेंगे भगवान जी से? कौन सा प्रश्न पूछेंगे आप? बस प्रश्न ही पूछना है और कुछ भी नहीं, तो व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू गोइंग टू आस्क द ऑलमाइटी? मैं भगवान से यही प्रश्न पूछूंगी कि लोगों के अंदर जो ये नेगेटिविटी आपने क्यों भरी है? क्यों लोग नेगेटिव अपने थॉट्स को के नेगेटिव थॉट्स के साथ लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को कई अपने नेगेटिव थॉट से हेल बना देते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स अपने भगवान जी आपने उनको क्यों दिए? सबको पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं दिए? क्योंकि नेगेटिविटी ही हमें हर फील्ड में पीछे लेके जाती है और मतलब शायद हमारे पतन का कारण ही नेगेटिविटी है। तो मैं भगवान से ही पूछना चाहूँगी कि भगवान ये नेगेटिविटी आपने डाली क्यों? पॉजिटिव ही क्यों नहीं रखा सबको? दैट्स रियली नाइस, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। मैम, आपका फेवरेट नंबर? फेवरेट नंबर 8। आई गेस्ड इट, आई गेस्ड। आपको ज्यादा सोशलाइजिंग करना पसंद है या मी टाइम कहते हैं ना, खुद के लिए वक्त निकालना? इज इट सोशलाइजिंग और मी टाइम? व्हाट विल यू प्रायोरिटाइज? मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं बहुत ही पहले बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज़ थी, इतना थी कि घर में भी गालियाँ खाती थी लोगों के लिए काम करके और लेट टाइम में घर पहुँचती थी। किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, उनको लेके इधर से उधर जा रही हूँ। फिर बहुत सारी गालियाँ भी खाई, पर मुझे उसका फिर सामने से बहुत कुछ ऐसा रिवर्ट मिला कि ये तो घर से बेली है, तब दौड़ी रहती है सबके साथ ऐसे-वैसे। फिर मैंने धीरे-धीरे कोशिश की कि ठीक है, अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है मैं करूँगी, लेकिन एक लिमिट में करूँगी क्योंकि हम किसी के लिए अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसके लिए शायद हम एक वो चीज़ बन के रह जाते हैं कि ये तो फालतू की है, इसके पास बहुत फालतू का टाइम है और इसको अपने घर का कोई परवाह नहीं है और लोगों के पीछे भागी रहती है। तो वही चीज़ है कि ठीक है, मेरे को सोशलाइज़ होना बहुत पसंद है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले मैं रखूँगी कि जहाँ मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी तो मैं तो सबके साथ हेल्प करने की कोशिश हमेशा ही करती हूँ। सोशलाइज़ रहना मुझे बहुत पसंद है कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो। जी, आप अपने आप को एक लीडर के रूप में देखते हैं या एक फॉलोअर के रूप में देखते हैं, या दोनों भी? मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी लीडर हूँ। क्योंकि जहाँ भी हम कभी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं या कुछ भी है, तो मैं ज़्यादा मतलब शो ऑफ नहीं करती, लेकिन शायद वो मेरा कुछ आंसर देने का तरीका ऐसा लगता है कि हमेशा ही मुझे एक लीडर के रूप में ही रखा जाता है, ग्रुप लीडर बना दिया जाता है। बचपन से ही बात मैं बता रही हूँ कि चाहे मैं अपना कल्चरल एक्टिविटीज़ करती थी, तो मुझे फ्रंट में रख दिया जाता था। और कभी किसी ग्रुप को अगर प्रेजेंटेशन करनी है तो मुझे वो रख दिया जाता था। तो शायद वो चीज़ भगवान ने मुझे दी है और मैं मानती हूँ कि मैं एक अच्छी लीडर बन सकती हूँ। मैं सबको मतलब एक लीडरशिप कर सकती हूँ और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकती हूँ। और फॉलोवर मैं उनके लिए बनना चाहती हूँ जो मुझे जहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, तो मैं उनके लिए एक अच्छी फॉलोवर भी हूँ कि मैं उनको फॉलो करना चाहती हूँ। हर इंसान में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब होती हैं, तो मैं उसकी अच्छाई को लेने के लिए हर एक की फॉलोवर हूँ। कि हर इंसान की अच्छाई मुझ में आए। मैं नेगेटिविटी किसी की भी नहीं लूँगी, पर मैं बता सकती हूँ कि अगर मुझे एक लीडर के रूप में रखा जाए तो मैं बहुत अच्छी लीडर भी हूँ और फॉलोवर मैं पॉजिटिव लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी फॉलोवर हूँ कि उनकी पॉजिटिविटी लेने के लिए मैं हमेशा ही उनके फॉलोवर बन के रहना चाहती हूँ। Wow, that's really nice. Now, ma'am, a very personal question. Is it comfort or style? मुझे है ना कंफर्ट, अच्छा स्टाइलिश ड्रेस होगा तो मैं क्या, अगर मुझे कंफर्ट नहीं मिला तो मैं उसको चेंज कर दूंगी जल्दी। तो आपके इसमें क्या है? इज इट कंफर्ट एंड स्टाइल और बोथ? हाउ डू यू मैनेज इट? बिकॉज यू आर वेरी स्टाइलिशली ड्रेस्ड, यू आर परफेक्ट द वे यू आर, आई एडमायर यू। तो हाउ वुड यू ओके। शेयर दिस? जी, मेरा मानना ये है कि स्टाइल में रहना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि एक सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही आपको स्टाइल रखना है। अगर आप एक सोसाइटी में जा रहे हैं या एक फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से ड्रेसअप होना है। पर वहाँ पे भी आपको वही ड्रेस वेयर करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपको ऐसा फ़ील ना आए अंदर से कि मैंने ये क्यों पहन लिया, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, वो चीज़ नहीं। स्टाइल को भी अपने कम्फर्ट को लेके चलना है
कि आप जिसको अपने आप से कॉन्फिडेंस, आपका अंदर से कॉन्फिडेंस है कि यस मैं अच्छी दिख रही हूँ और ये चीज़ पहनना मेरे लिए बहुत अच्छा है। और अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर आपको ड्रेस वेयर करना चाहिए। अगर आप एक जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ, तो वहाँ पे मैं गाउन पहन के नहीं जा सकती, वन पीस पहन के नहीं जा सकती, मॉडर्न ड्रेसेस पहन के नहीं जा सकती। तो वो जो मेरा जो ज़ोन है, तो उसमें मुझे सूट या साड़ी ही वियर करनी है। और अगर मुझे किसी फैशन इंडस्ट्री में जाना है, तो वहाँ मैं वन पीस भी पहनूँगी, मैं गाउन्स भी पहनूँगी, साड़ीज़ भी पहनूँगी, जहाँ-जहाँ मुझे ठीक लगता है, मैं वो सब चीज़ वियर करूँगी। लेकिन मेरा मानना वही है कि स्टाइल के साथ कम्फर्ट भी बहुत ज़रूरी है। Wow, beautiful answer. That's really nice, dear. Excellent. Ma'am, is it tea, coffee, or any juice? If it is juice, which juice it is? आई लव टी, आई एम टी लवर। Wow. अभी टी है ग्रीन टी या नॉर्मल चाय, कौन सी वाली आपको जी। पसंद? मैं दिन में 2 बार तो चाय लूँगी, सिंपल चाय, मसाला चाय। और 2 टाइम मैं ग्रीन टी भी लेती हूँ, सुबह-शाम। तो पर मुझे अपना एनर्जी ड्रिंक लगता है कि मुझे, जैसे मैं थक के आ रही हूँ, स्कूल से आ रही हूँ, तो मुझे एक अच्छा बड़ा वाला मग चाय का चाहिए, मसाले वाली चाय, और सुबह भी 1 कप चाय चाहिए। मैम अभी हम ये जानना चाहेंगे, आज तक आपको बहुत सारे तोहफे मिल चुके होंगे। जी। आई एम श्योर यू हैव रिसीव्ड सो मेनी गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आई मीन लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स, लॉट्स ऑफ अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। इन सभी में से आप, विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे लगता है जब टीचर्स डे पे मुझे बच्चे कार्ड्स बना के देते हैं। वाह, वो आई लाइक। हैंडमेड जो कार्ड्स होते हैं ना, वो मेरे दिल को बहुत छू के जाते हैं, और क्योंकि बच्चे अपने एफर्ट्स, अपना प्यार मुझे, एक खरीद के कोई गिफ्ट देना, उसको तो चलो वो दे रहे हैं, लेकिन जो खुद अपने हाथ से बना के कार्ड्स, फूल बना के देते हैं, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और मैं उनको बड़े सँभाल के रखती हूँ। और मैं बच्चों को बताती हूँ कि मैंने सँभाल के रखे हैं, उनकी मैं फ़ोटोज़ अपलोड करती हूँ, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और बड़े प्यार से लेती हूँ, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट वो टीचर्स डे पे जो बच्चों के बनाए हुए कार्ड और फ्लावर्स, वो सबसे अच्छे लगते हैं मुझे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, दैट्स अ लवली आंसर। मैं कुछ और ही सोच रही थी, आप कुछ और ही आंसर देंगे आप ऐसा। दैट्स रियली नाइस। बी सो यू आर फर्स्ट अ टीचर, right? Yes, I yes, yes, understand. yes. First, you're a teacher. According to your profession, you're a teacher first, and you give more importance to that. And your passion, of course, with the modeling, acting, and dancing, etc. आपके जी, साथ वक्त बिता के बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सीखने को मिला। आप सिर्फ एक जैसे you're not only like focused on studies and education, you are very progressive. लाइक आगे का भी सोच आपका बहुत अच्छा है, और आपका जी। पैशन भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो यू आर एन ऑलराउंडर, जो हम कहना चाहेंगे, यू आर एन ऑलराउंडर, एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर थैंक दैट। यू मैम, थैंक यू मैम, दैट्स रियली थैंक यू। नाइस। तो अंत में समाप्त करने से पहले आप हमें 3 तोहफा देना है, 3 शब्दों के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू, इसके अलावा आप ऐसे कोई 3, any 3 words, let me put it right, any 3 words हुँ, as a हुँ। gift to the International Fab Talks. What are the 3 words that you'd love to share with us as a gift? स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, और हमेशा ही अपने भगवान को याद रखें, और पॉजिटिविटी के साथ सबको एक अच्छा सहारा दें, और हमेशा पॉजिटिव रहें। Excellent, excellent, ma'am. Thank you so much for the day today, sharing the space with us. Thank you very much. We look forward to many more interactions with you. We sign off now with positivity. Lots of love to you, and we wish you all the best for the coming events and थैंक यू मैम, the various other competitions that you take part in. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मैम, थैंक्स। Thank you, dear. राधे, राधे। Radhe Radhe, ma'am. Radhe Radhe. That's really nice. Thank you. Yes, dear. So, dear friends, do share this video with the right kind of people. You never know who may be inspired. There were many messages hidden in this beautiful session. You can share them with the right kind of people. It was for students, it was for staff members, it was for parents, it was for people who want to become models. All kinds of, messages were given. Different kinds of messages were shared today on the International Fab Talks by our celebrity guest. She was none other than Shivani ma'am. To put it right, she is Mrs. Shivani Kaushal, joining us all the way from Himachal Pradesh, India. And don't forget to like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. We would love to have you here as our guests. Above all, follow your passion and turn it into a profession. And of course, don't forget to love yourself, love your family, and of course, give back to the society in the right way. Protect the environment and be of some use to yourself and to the society at large. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. Thank you, ma'am.